प्रार्थना गुरुदेव से ये स्वर्ग संसार हो, अति उच्चतम जीवन बने, परमात्मय व्यवहार हो, ना हम रहे अपने लिए, हमको सभी से गर्ज है, गुरुदेव ये आशीष दे, जो सोचने का मर्ज है। हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेश के, सच प्रेम के नित नेम के, सधर्म के सत्कर्म के, हो चीर झूठी राह की, अन्याय की अभिमान की, सेवा करन को दास की, परवाह नहीं वो जान की। छोटे न हो हम बुद्धि से, हो विश्वमय से ईश्वर, हो राममय और कृष्णमय, जगदेव में जगदीशमय, हर इंद्रियों पर ताब कर, हम वीर हो अति वीर हो, उज्ज्वल रहे चरते सदा, निज धर्म रत खंभीर हो, अति शुद्ध हो आचार में, तन मन हमारा सर्वदा, आध्यात्म की शक्ति हमें पल भी नहीं कर दे जुदा, इस अमर आत्मा का हमें हर श्वास भर में गम रहे, गर मौत भी आ गई, सुख दुख हमसे कम रहे। So today we have our in accounting standards webinar on various accounting standards. Days 21 foreign exchange, days 12 income taxes, and in days 41 agriculture, 20 government 20 in days 21 government grants. Yeah. All our speakers have prepared their presentations. सबने share भी किए हैं इन्होंने. So let them start with the presentations, and I will be supporting them wherever required. Yes. So good afternoon everyone. I am Sapna and today I am going to cover Ind AS 21, the effects of changes in foreign exchange rate. Starting with the primary objectives and scope of application, the primary objective is to prescribe the accounting treatment for foreign currency transactions, foreign operations. It establishes principle for translating financial statements into the presentation currency. The scope of application of this Ind AS, it applies to all the foreign currency transactions, translation of foreign operations, and presentation in different currencies. Moving on to the key concepts that will be covered in this Ind AS, it is currency and its types, monetary and non-monetary items, foreign operation, foreign currency transactions, and translation of financial statements. Starting with the definitions, the Ind AS 21 defines currency into three types: functional currency, presentation currency, and foreign currency. So the functional currency is the currency of the primary economic environment. जो हमारा primary economic environment है, उसमें जो currency operate कर रही है, वो हमारी functional currency होगी. Foreign currency. So you are explaining this functional currency concept in detail. Yeah. And foreign currency, it is a currency other than a functional currency. Presentation currency क्या होती है? Presentation currency is a currency in which हम अपने financial statements present करते हैं. जिस भी currency में अपने financial statements present कर रहे हैं, वो हमारे लिए हमारी presentation currency है. So getting in detail, functional currency, as the definition says, it is the currency of the primary economic environment
और इसके जो कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडिकेटर्स, साथ में ये भी होता है कि जरूरी नहीं है कि हमारी फंक्शनल करेंसी हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी हो. द फंक्शनल करेंसी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम प्रेजेंटेशन करेंसी, द करेंसी इन विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर पब्लिश्ड. और एक बार जब फंक्शनल करेंसी स्टैब्लिश्ड हो गई, द फंक्शनल करेंसी ओनली चेंजेस इफ देयर इज अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स. अदरवाइज हम अपनी फंक्शनल करेंसी ऐसे ही बार बार चेंज नहीं कर सकते. मूविंग ऑन टू द इंडिकेटर्स ऑफ फंक्शनल करेंसी. Indicators, there are two types of indicators, primary indicator and secondary indicator. तो primary indicators कौन कौन से हो गए, जैसे currency influencing the sales price for goods and services. Goods and services के sales price को जो influence कर रही है वो हमारी functional currency है. Currency of the country whose competitive forces determine prices of its goods and services. जिस country के competitive forces हमारी goods और services के price determine कर रहे हैं वो currency हमारी functional currency हो सकती है. Currency mainly influencing labor, material and other cost of providing goods and services. इसके बाद कुछ होता है सेकेंडरी इंडिकेटर्स, जैसे कि करेंसी, जिस करेंसी में हमने फाइनेंशियल फंड्स ले रखे हैं फाइनेंशियल एक्टिविटीज से, करेंसी इन विच फंड फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर जनरेटेड. सेकेंड हो सकती है करेंसी इन विच रिसीट्स फ्रॉम ऑपरेशंस आर रिटेन्ड. इसमें एक नोट और है कि व्हेन द अबव इंडिकेटर्स आर मिक्स्ड एंड द फंक्शनल करेंसी इज नॉट ऑब्वियस, द मैनेजमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू पुट जजमेंट इन इट. जजमेंट में क्या होगा, हमारे पास काफी सारे इंडिकेटर्स होंगे तो हमें प्रेफरेंस पहले प्राइमरी इंडिकेटर्स को देनी है और उसके बाद में हमको सेकेंडरी इंडिकेटर्स को प्रेफरेंस देनी है. नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. Which of the following is not a primary indicator for determining an entity's functional currency? Aditya Bansal. The correct answer is option C. Correct, because it is a secondary What did indicator. the other? So moving on to next, monetary versus non-monetary items. Starting with the definitions, जो कोई भी item जिनमें we have a right to receive a fixed or determinable number of units of currency, जिसमें हमें पता हो कि एक fixed या एक determinable amount हमको मिलना है या हमको पे करना है, तो that will be a monetary item. For example, pension हो गई या कोई और employee benefits जो भी हमको cash में पे करने हैं, provisions that are to be settled in cash, etc. नॉन मॉनेटरी में जहां पे हमारे पास कोई राइट नहीं है टू रिसीव फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी, जैसे हमारी इन्वेंट्री हो गई, पीपी हो गई और इंटेंजिबल एसेट्स हो गए. इसमें एक और आता है प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. ये नॉन मॉनेटरी क्यों है, क्योंकि कोई भी मनी ना हमको फ्यूचर में पे करना है ना ही हमको फ्यूचर में रिसीव होगा, इसलिए ये भी नॉन मॉनेटरी में. इसके रिगार्डिंग एक केस स्टडी है जहाँ पे एक एंटिटी has received advance consideration from a foreign customer and has paid advance to a foreign supplier. So whether such said advance is non-monetary item. In general, we would say कि yes, this is a non-monetary item, but in certain situations, for example, when this advance is refundable, in such cases, this can be taken as a monetary item. For example, कि अगर हमने advance दिया है and in an agreement it is stated that we have a right to have the advance back. In such cases, we can say that it is a monetary item. But the mere presence of the termination clause or the refund clause in an agreement does not make it a monetary item. It should, the refunds are triggered. If the refunds are triggered, only in such case we will classify them as monetary items. तो बेसिकली कह रही है कि जहाँ पे ये सर्टेन हो गया कि अब रिफंड आना है, it will not be adjusted against the any supply. So there it will be a monetary item. So we need to, see that line. कि ये trigger कब हुआ? Suppose agreement cancel हो गया या कोई वजह हो गई कि साहब अब ये पैसा वापस ही आना पड़ेगा, ये माल आपको सप्लाई नहीं कर सकते. So then that will be considered as monetary item. Next, moving on to the accounting treatment for foreign currency transactions. इनिशियली जब हम रिकॉर्ड करेंगे फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शंस को, तो हम उसके रिकॉर्ड करेंगे उस दिन की एक्सचेंज रेट पे जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया. फॉरेन करेंसी ट्रांजैक्शन इज इनिशियली रिकॉर्डेड बाय ट्रांसलेशन इन द एंटिटीज फंक्शनल करेंसी एट द एक्सचेंज रेट ऑन द ट्रांजैक्शन डेट. फिर जब हम उसको सब्सिक्वेंटली मेजर करेंगे हमारी रिपोर्टिंग डेट पे, तो उसमें हम दो बाइफर्केशंस करेंगे. इसको आप फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हो क्या? ऑन द ट्रांसफर डेट को? हाँ सर, आगे भी सब्सिक्वेंट मेजरमेंट एट द रिपोर्टिंग डेट. जो सब्सिक्वेंट मेजरमेंट होगा उसमें हमारे दो बाइफर्केशंस होंगे, मॉनेटरी आइटम्स एंड नॉन मॉनेटरी आइटम्स.
तो जो मॉनेटरी आइटम्स है वो रिपोर्टिंग डेट पे दे विल बी ट्रांसलेटेड यूजिंग क्लोजिंग एक्सचेंज रेट एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। जैसे कैश हो गए, रिसीवेबल्स हो गए, पेबल्स हो गए, ये सारे एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे हम रिकॉर्ड करें। इन केस ऑफ नॉन मॉनेटरी फिर दो बाइफर्केशन आ जाते हैं, when the items are recorded at historical cost or the items are recorded at fair value. इन केस जब नॉन मॉनेटरी आइटम्स हिस्टोरिकल कॉस्ट पे रिकॉर्ड होंगे तो वो रीमेजर नहीं होंगे, नॉन मॉनेटरी आइटम्स रिमेन एट द एक्सचेंज रेट एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन, तो उनका कोई डिफरेंस भी नहीं है। इन केस नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट फेयर वैल्यू, जो हम फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, तो उसको हम रीमेजर करेंगे उस एक्सचेंज रेट पे जिस दिन हमने उस आइटम को फेयर वैल्यू किया था। So the remeasure at the exchange rate on the date of revaluation, that is when the fair value was determined. अब मॉनेटरी आइटम्स के केस में और नॉन मॉनेटरी आइटम्स एट फेयर वैल्यू के केस में कुछ एक्सचेंज डिफरेंस भी आए, उसका हम कैसे ट्रीटमेंट करेंगे? एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम सेटलमेंट और ट्रांसलेशन ऑफ मॉनेटरी आइटम्स, दे आर रिकॉग्नाइज्ड इन पीएनएल। और नॉन मॉनेटरी के केस में क्या होता है, जो हमारा फेयर वैल्यू गेन और लॉस आया है, अगर फेयर वैल्यू गेन और लॉस हमारा ओसीआई में रिकॉर्ड हो रहा है तो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस भी ओसीआई में रिकॉर्ड, पर अगर फेयर वैल्यू गेन और लॉस पीएनएल में हमने रिकॉर्ड करा है तो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस भी पीएनएल में रिकॉग्नाइज है। So in case of non-monetary items, if the gain or loss on revaluation of a non-monetary item is recognized in other comprehensive income, then the exchange component of that gain or loss is also recognized in OCI. And if the gain or loss on a non-monetary item is recognized in P&L, any exchange component of that gain or loss will be recognized in P&L. Moving on to the subsequent recognition, एक और केस आता है जहाँ पे the carrying amount of some items is determined by comparing two or more amounts. When such an asset is non-monetary and measured in a foreign currency, the carrying amount is determined by comparing the cost or NRV. For example, inventory हमारा एक non-monetary asset है, उसको हम year end पे कैसे रिकॉर्ड करते हैं? Cost और NRV whichever is lower. So in case जब हम foreign currency transaction कर रहे हैं और हमको उस टाइम पे रिकॉर्ड करना है, तो हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि हम जब भी कंपेयर करेंगे कॉस्ट और NRV को, हम हमेशा अपनी फंक्शनल करेंसी में कंपेयर करेंगे। So convert the cost and net realizable value into the functional currency before comparing both of them for the purpose of recognition. एक केस स्टडी है रिकॉग्निशन के लिए, AK Limited an Indian company with functional currency of INR purchased machinery worth $1 lakh on credit. तो परचेज करी थी 1 सितंबर को, 1 सितंबर की रेट थी 75 रुपीज पर डॉलर। तो फर्स्ट इनिशियल रिकॉग्निशन तो हम कर लेंगे ऑन द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन ही, तो हमने फर्स्ट अपनी बुक्स में एंट्री पास कर दी, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स एट द रेट जो उस दिन थी $75 इंटू 1 लाख, 75 रुपीज इंटू 1 लाख। फिर जब हम रिपोर्टिंग डेट पे सब्सिक्वेंटली उसको रिकॉर्ड करेंगे तो हम चेक करेंगे कि वेदर वो मॉनेटरी आइटम है कि वो मॉनेटरी आइटम नहीं है। तो मशीनरी हमारा एक नॉन मॉनेटरी आइटम है, इसलिए हम उसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पर रिकॉर्ड करेंगे और उसको रीमेजर नहीं करेंगे। बट क्रेडिटर्स बीइंग हमारे मॉनेटरी आइटम, उसको ईयर एंड पे हम रीमेजर करेंगे और जो भी ईयर एंड पे रेट चल रही होगी, एक्सचेंज रेट चल रही होगी, उस हिसाब से हम उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ईयर एंड पे हमारे पास रेट है 80 रुपीज पर डॉलर, जिससे हमारी क्रेडिटर्स की वैल्यू क्या हो जाती है 80 रुपीज इंटू 1 लाख डॉलर विच इज 80 लाख रुपीज। तो एक डिफरेंस आया हमारे पास 75 लाख और 80 लाख के बीच का, दैट इज एक्सचेंज लॉस हमारे पास आया 5 लाख रुपए का, क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई। तो उस 5 लाख के लॉस को भी हम अपनी बुक्स में रिकॉग्नाइज करेंगे और हमारी एंट्री पास होगी पीएनएल अकाउंट डेबिट 5 लाख रुपीज टू क्रेडिटर्स 5 लाख रुपीज, which is being exchange loss on foreign currency creditors recognized. Next, there is a question for online participants. X Limited purchased an inventory of $1,000 on 1st September 2024. Rate on 1st September was ₹70 per dollar. On 31st March 2025, the NRV was $990 and the rate on 31st March was 75 rupees per dollar. Determine the value on which the inventory will be recognized at the year end. Options: rupees 70,000. Option B, rupees 74,250. Option C, $1,000 and option C, $990. लस्य सोमानी, निष्ठा संधि, लस्यता सोनी। Nishita Sanghi and Lakshita Soni. Mic का issue है ना. So you can answer on message like A.
Answer is A. Yes, the answer is A, ₹70,000, क्योंकि हम पहले उस वैल्यू को अपने फंक्शनल करेंसी में चेंज करेंगे और फिर हम कंपेयर करेंगे। तो जब हम अपनी फंक्शनल करेंसी में निकालेंगे तो हमारी कॉस्ट आएगी 74,250 और हमारी एनआरवी आएगी 70,000। तो वी रिकॉर्ड आवर एसेट एट 70,000। नेक्स्ट, अभी तक हमने पढ़ा ट्रांजैक्शन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। अब वी विल बी स्टडिंग ट्रांसलेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द प्रेजेंटेशन करेंसी। क्योंकि हमारी फंक्शनल करेंसी हर बार हमारी प्रेजेंटेशन करेंसी नहीं होती, इसलिए कई केसेस में हमको उसको ट्रांसलेट करना पड़ता है। तो अब ट्रांसलेशन के भी कुछ रूल्स होते हैं। An entity may decide to present its financial statements in a currency other than its functional currency. If the presentation currency differs from the entity's functional currency, it translates its financial statements into the presentation currency. तो ट्रांसलेशन के रूल्स के जो भी जितने भी असेट्स और लाइबिलिटीज होंगे वो क्लोजिंग रेट पे चेंज होंगे। जो भी हमारी इनकम और एक्सपेंसेस है वो जिस दिन हमने ट्रांजैक्शन किया उस दिन क्या एक्सचेंज रेट थी उस पर रिकॉर्ड होंगे। अब क्योंकि हमने जो असेट और लाइबिलिटीज है उनको क्लोजिंग रेट पे हमने रिकॉर्ड किया है, तो उसकी वजह से भी कुछ एक एक्सचेंज डिफरेंस आएगा। सो दैट रिजल्टिंग एक्सचेंज डिफरेंस विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन OCI और एक अलग से उसका रिजर्व बनेगा एंड विल बी प्रेजेंटेड इन अ सेपरेट रिजर्व व्हिच इज FCTR, फॉरेन करेंसी ट्रांसलेशन रिजर्व। There is a question for online participants. At what rate the assets and liabilities of foreign operations be translated? First, historical rate. Second, average rate for the period. Third, closing rate at the reporting date. Fourth, rate chosen by the management. दिव्यांश अग्रवाल। माइक ऑन कर दिव्यांश। Sir, answer is C. Closing rate at reporting date. Correct. आपको माइक ऑन करके ही आंसर देना है। फायदे हुए अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो अलग बात है। तो डू नॉट यूज इट एज ए प्रैक्टिस। एक जने ने माइक आंसर दे दिया तो मतलब ये चालू हो गया। ठीक है। Moving on to the next topic, foreign operations and their functional currency. अब पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज फॉरेन ऑपरेशन। मैं अगर एक रिपोर्टिंग एंटिटी हूँ तो मेरी अगर कोई सब्सिडियरी, कोई एसोसिएट, कोई जॉइंट वेंचर या कोई ब्रांच किसी दूसरी कंट्री में है या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ कोई दूसरी करेंसी उसकी फंक्शनल करेंसी, तो उस केस में वो मेरी फॉरेन ऑपरेशन होगी। फॉरेन ऑपरेशन हैज बीन डिफाइंड एज एन एंटिटी दैट इज अ सब्सिडियरी, एसोसिएट, जॉइंट वेंचर or branch of a reporting entity whose activities are based in a country or currency different from that of the reporting entity. तो अब इसको भी फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन हमको उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो अपनी करेंसी, अपनी फंक्शनल करेंसी में चाहिए। तो इसके लिए भी कुछ रूल्स है। रूल्स आर सिमिलर टू व्हाट जो अभी हमने ट्रांसलेशन के रूल्स पढ़े। असेट्स और लायबिलिटीज विल बी रिकॉर्डेड एट द क्लोजिंग एक्सचेंज रेट। इनकम एंड एक्सपेंसेस विल बी ट्रांसलेटेड एट द एक्सचेंज रेट्स एट द डेट ऑफ ट्रांजैक्शन। जो भी इक्विटी कंपोनेंट्स है जैसे इक्विटी शेयर कैपिटल, ये सब हिस्टोरिकल रेट्स पे रिकॉर्ड होंगे। अब इसमें भी जो एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है, any resulting exchange difference will be recognized in other comprehensive income and accumulated in a separate component FCTL, foreign currency translation। इसके बाद नेक्स्ट आता है इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस इन फॉरेन ऑपरेशंस। अब कुछ विद इन फॉरेन ऑपरेशंस में ट्रांजैक्शंस होते हैं ड्यूरिंग द ईयर। तो फॉर द पर्पस ऑफ CFS, व्हेन फॉरेन ऑपरेशंस आर कंसोलिडेटेड, special attention is required for transactions between group entities, particularly concerning foreign exchange difference। इसमें क्या होता है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कोई भी ऐसा इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन किया जिसकी वजह से कोई असेट या लायबिलिटी क्रिएट हुई, वो तो कंसोलिडेशन में एलिमिनेट हो जाएगी, पर वो ट्रांजैक्शन की वजह से अगर कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया वो एलिमिनेट नहीं है, वो जाके रिकॉग्नाइज होगा PNL। सो द एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम द ट्रांजैक्शंस आर नॉट एलिमिनेटेड एंड आर रिकॉर्डेड इन PNL। अब इसमें भी दो केसेस होते हैं। मॉनेटरी आइटम्स जहां पे हमने ट्रांजैक्शन किया, एक्सचेंज डिफरेंस आया, एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग ऑन इंट्रा ग्रुप मॉनेटरी आइटम्स जहां पे हमको पता है सेटलमेंट कब होगा, या तो हमने प्लान कर लिया और वी नो कि थोड़े अमाउंट ऑफ पीरियड में वो सेटल हो जाएगा, उस केस में जो हमारा एक्सचेंज डिफरेंस है वो PNL में रिकॉग्नाइज होगा। ऑन द अदर हैंड, अगर हमने ना तो प्लान किया है ना हमको फोर्सिएबल फ्यूचर में पता है कि सेटलमेंट कब होगा, उस केस में एक तरह से वो एक हमारा इन्वेस्टमेंट हो गया हमारी फॉरेन ऑपरेशन में, तो it will be recorded as the net investment in a foreign operation। नेक्स्ट, अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा, ट्रीटमेंट ऑफ एक्सचेंज डिफरेंस। जहां पे
फॉर द पर्पज ऑफ स्टैंड अलोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, चाहे हमको पता हो कि कब सेटलमेंट होगा, चाहे हमको नहीं पता हो कि कब सेटलमेंट होगा कि नहीं, दोनों ही केसेस में जो एक्सचेंज डिफरेंस है वो पीएनएल में रिकॉर्ड होगा. बट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, तो अगर हमको पता ही नहीं है कि कब सेटलमेंट होगा या हमने प्लान ही नहीं करा है, उस केस में तो वो चला जाएगा ओसीआई में, और जब वो बाद में डिस्पोज होगा तो वो डिस्पोज होकर पीएनएल में चला जाएगा. लेकिन जिसमें हमको पता है वेयर द सेटलमेंट इज लाइकली टू अकर इन द फोरसीएबल फ्यूचर, उस केस में फॉर द पर्पस ऑफ कंसोलिडेशन वो एक्सचेंज चला जाएगा पीएनएल में. नाउ देयर इज अ केस स्टडी. पेरेंट कंपनी P has USD as its functional currency and subsidiary S has Euro as its functional currency. P, whose reporting date is 31st March, lends USD 100 to S on 30th September. S converts the loan amount received in euros on the date of receipt. तो पेरेंट कंपनी ने अपनी सब्सिडियरी को लोन दिया ऑफ $100 USD. रेलेवेंट एक्सचेंज रेट्स आर गिवन 30 सितंबर को एंड 31 मार्च की. सो इसकी एंट्रीज हम दोनों पेरेंट और सब्सिडियरी की बुक्स में कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे. तो पेरेंट ने लोन दिया यूएसडी में, पेरेंट की फंक्शनल करेंसी भी यूएस, तो पेरेंट के केस में तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस आया नहीं. पेरेंट ने 100 यूएसडी एस को दिए, लोन अमाउंट इज डिनोमिनेटेड इन पीस फंक्शनल करेंसी, सो देयर इज नो फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस एट दिस पॉइंट. इस केस में बस हम एक एंट्री पास कर देंगे सब्सिडियरी पी डेबिट टू बैंक. 31 मार्च को अगर हम देखेंगे पेरेंट कंपनी के लिए, तो जो लोन हमने दिया वो हमारे लिए एक मॉनेटरी आइटम है, हमारी करेंसी में, तो कोई एक्सचेंज डिफरेंस नहीं आया, तो हमको उसको रीट्रांसलेट करने की जरूरत भी नहीं पड़ी. द लोन टू एस इज अ मॉनेटरी एसेट डिनोमिनेटेड इन पीस फंक्शनल करेंसी, देयरफॉर P does not retranslate this amount and no exchange difference arises for P. अब हम कंपनी एस सब्सिडियरी के लिए देखते हैं. ऑन द डेट जिस दिन उसको लोन मिला, उसने लोन को ट्रांसलेट किया, अपनी करेंसी में यूरो में लेकर आया, उसने रिकॉर्ड किया. उस दिन जनरल एंट्री क्या पास हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन फ्रॉम पेरेंट कंपनी P. 31 मार्च को जो P के लिए लोन है वो एक मॉनेटरी लाइबिलिटी है, उसको क्योंकि उसने अपनी करेंसी में कर रखा है, बट क्योंकि P की करेंसी उसके लिए फॉरेन करेंसी है, वो उसको दोबारा रीमेजर करेंगे, रीट्रांसलेट करेंगे. तो जब हम इसको रीट्रांसलेट करेंगे तो क्योंकि हमारी लाइबिलिटी हम क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट करेंगे. क्लोजिंग रेट हमने देखी थी, क्लोजिंग रेट वाज 1.2 यूरोस. तो इस केस में हमने उसको रीट्रांसलेट किया तो हमें पता चला एक एक्सचेंज डिफरेंस आ रहा है ऑफ 50. इसकी भी हम इस लॉस को, इस एक्सचेंज लॉस को भी हम बुक करेंगे क्योंकि हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है. तो इसकी भी एक जनरल एंट्री एट द ईयर एंड रिपोर्टिंग डेट पास हो जाएगी, विच इज एक्सचेंज लॉस डेबिट 50 टू लोन फ्रॉम पेरेंट कंपनी P 50. नाउ मूविंग ऑन, गुडविल एंड फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स इन बिजनेस कॉम्बिनेशंस. अब गुडविल इज आल्सो ट्रीटेड एज एन एसेट फॉर फॉरेन ऑपरेशन. कॉन्सिक्वेंटली क्योंकि ये एसेट है तो ये भी क्लोजिंग रेट पे ट्रांसलेट हो जाएगा. एनी एक्सचेंज डिफरेंस अराइजिंग फ्रॉम दिस ट्रांसलेशन is recognized in OCI and then accumulated in FCTM. Similarly for fair value adjustments, कोई भी अगर fair value adjustments हो रहे हैं assets और liability के लिए, तो they are also considered as a part of foreign operations asset and liabilities. And again, because they are a part of asset and liabilities, they'll be translated at the closing exchange rate at the reporting date, and the resulting exchange difference will be transferred to OCI and then FCTM. Now next, disposal of foreign operations. इस केस में क्या होता है, डिस्पोजल कैन बी ऑफ टू टाइप्स, मे बी फुल डिस्पोजल और मे बी पार्शियल डिस्पोजल. अगर फुल डिस्पोजल हो रहा है हमें केस फॉरेन ऑपरेशन जो हमारी सब्सिडियरी नहीं है और हमने उसको फुल्ली डिस्पोज कर दिया, उस केस में जितना सारा का सारा जो हमारा क्यूमुलेटिव एक्सचेंज डिफरेंस है वो सारा का सारा हम रिक्लासिफाई कर देंगे पीएन. और दूसरे केस में जहां हमारी कोई सब्सिडियरी थी उसको हमने फुल्ली डिस्पोज कर दिया, हमारा कंट्रोल यूज हो गया, उस केस में जो हमारा शेयर था उस सब्सिडियरी में वो सारा का सारा शेयर पीएनएल में चला जाएगा. जो हमारा शेयर नहीं था एनसीआई नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, वो सारा का सारा हम डी रिकॉग्नाइज करते हैं. ऑन द अदर हैंड पार्शियल डिस्पोजल के लिए, अगर पार्शियल डिस्पोजल ऑफ अ फॉरेन ऑपरेशन हो रहा है जो हमारी सब्सिडियरी थी लेकिन हमने डिस्पोज किया बट अभी भी हमारे पास उसका कंट्रोल है, हमने कंट्रोल नहीं खोया, उस केस में जो हमने प्रोपोर्शनेट शेयर डिस्पोज करा है उसका जो एक्सचेंज डिफरेंस होगा वो चला जाएगा एनसीआई. और जिसमें ऑन पार्शियल डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन सब्सिडियरी के अलावा जो हो रहा है उस केस में जितना हमने प्रोपोर्शनेट शेयर डिस्पोज किया है वो चला जाएगा हमारा पीएनएल. एग्जांपल्स भी है उसके, कुछ एग्जांपल्स रिगार्डिंग डिस्पोजल ऑफ फॉरेन ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, पेरेंट पी के पास 100% ऑफ फॉरेन सब्सिडियरी का कंट्रोल था, फुल्ली ओन सब्सिडियरी. पी सेल्स 70% ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट, तो अब इसने कंट्रोल लूज कर दिया. इस केस में क्या होगा, जो एंटायर बैलेंस है एफसीटीआर रिजर्व का वो हम रिक्लासिफाई कर देंगे पीएनएल. सेकंड,
Parent company P owns 100% of foreign subsidiary S and it sells a significant, very less amount of share, but is 10% of its investment और अभी भी कंट्रोल उसी के पास में. उस केस में क्या होगा, जो 10% बैलेंस है वो चला जाएगा एलपीआई में रिक्लासिफाई होगा. Parent P owns 35% of foreign associate. 35% में से उसने 5% स्टेक बेच दिया और अभी भी उसके पास सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है. इस केस में क्या हुआ, जितना परसेंट उसने शेयर डिस्पोज कर दिया उतना बैलेंस उसको पीएनएल में रिक्लासिफाई करना है. क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स. एक्सचेंज डिफरेंस ऑन ट्रांसलेटिंग फॉरेन ऑपरेशंस आर रिकॉग्नाइज्ड इन ए प्रॉफिट एंड लॉस इमीडिएटली, बी अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, सी रिटेन्ड अर्निंग्स, डी एज अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू. तानिया गुप्ता. तानिया. माइक ओपन करो, अपना आंसर दो. अरे Mic open माइक ओपन करो. Why you are advocating us? म्यूट कर रहा है मैंने, ऐसे ओपन करो ऐसे. चल आगे चल. करेक्ट, अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में जाएगा वो डिफरेंस. नाउ देयर आर क्वेश्चंस फॉर ऑफलाइन पार्टिसिपेंट्स. व्हेन कैन एन फंक्शनल करेंसी बी चेंज्ड? एनी टाइम व्हेन द मैनेजमेंट डिस्क्रिशन, बी ओनली व्हेन देयर इज अ चेंज इन अंडरलाइंग ट्रांजैक्शंस और कंडीशंस, सी एवरी फाइनेंशियल ईयर एंड, डी नेवर वंस डिटरमाइंड. पूछ ले किसी को. क्योंकि हम लोग कार्तिक. प्राइमरी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में तो ऑलरेडी सामने क्या चल रहा है? पास में आ जा. Correct, B. Second question. At what rate are assets and liabilities of foreign operations translated? A. Correct. Third, non-monetary items carried at historical cost are translated using A. Closing rate, B. Average rate, C. Exchange rate at the translation date, D. Current market rate. प्लस. Correct. Now we are taking final key takeaways from this index. First, हमने पढ़ा functional currency. Functional currency is the currency of the primary economic environment जो हमारे है. Second, it may or may not be same to presentation currency. अलग हो सकती है कई केसेस. फॉर एग्जांपल जैसे किसी केस में हमें फॉरेन बैंक से लोन लेना है तो हमको अपनी फंक्शनल करेंसी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा. दैट विल बी आवर प्रेजेंटेशन करेंसी. मोबाइल क्यों चला रहा है? तो पास में ऐसे नहीं दिख रहा वो. PNL versus OCI. Monetary items generate exchange differences in PNL. Conversely, translation difference जो भी है वो रिकॉग्नाइज होगा OCI. जो हमारी ट्रांजैक्शन की वजह से डिफरेंस आ रहा है वो PNL में जाएगा. ट्रांसलेशन की वजह से जो हमारा डिफरेंस जा रहा है वो OCI में जाएगा. Now, prospective principle of change. Any change in functional currency must be applied prospectively from the date of change. जिस दिन से हमारी करेंसी चेंज हो रही है उस दिन से वो प्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होगी आगे. This means no retrospective restatement of prior periods, simplifying implementation while ensuring comparability from the point of change. फोर्थ आता है मॉनेटरी वर्सेस नॉन मॉनेटरी का डिस्टिंक्शन हम कैसे करेंगे. अगर हमारे पास राइट है कि हम फिक्स्ड अमाउंट या डिटर्मिनेबल अमाउंट फ्यूचर में लेंगे या देंगे, देन दैट विल बी क्लासिफाइड एज मॉनेटरी. और अगर हमारे पास ये फिक्स डिटर्मिनेशन नहीं है कि कितना अमाउंट या हम देंगे कि नहीं, तो वो हमारा नॉन मॉनेटरी आइटम है. द ट्रीटमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी आइटम्स hinges on their classification. Monetary items are retranslated at each reporting date's closing rate,
while non-monetary items carried at historical cost retain their transaction date at exchange rate. Thank you. Good afternoon, everyone. I am Mansi Maheshwari, and today I'll be covering India's 12 income taxes. Starting off with the objective of income. Starting off with the objective of India's 12. First, it prescribes the accounting treatment for current as well as deferred income taxes. Second, it ensures कि जो हमारे financial statements है, they accurately show present as well as the future tax implications. Third, it provides clear guidelines over recognizing, measuring, presenting, and disclosing all the income tax related financial information. Scope of India's 12. So India's 12 it applies to every entity जो अपने financial statements prepare करती है as per the Ind AS. It applies to all the domestic as well as foreign income taxes. It does not include taxes that are not directly tied to income such as sales tax or value added tax. और जो dividend taxes होते हैं which are applied on distribution of dividend by subsidiaries, associate and joint venture उन पे भी Ind AS 12 apply होता है. Let's understand some key definitions. First, the accounting profit. Accounting profit is also known as profit before tax. तो profit and loss में before considering any income tax expense जो profit आता है, that is accounting profit. Second, taxable profit. So taxable profit is the profit जो determined होता है as per the taxation laws. It is the amount of profit जिसपे income tax is payable or recoverable. Third, current tax. Current tax is the amount of income tax जो कि हम pay करते हैं on. It is calculated on the taxable profit. Fourth is deferred tax. Deferred tax arises from the temporary differences between the accounting profit and the taxable profit, and we will be learning about deferred tax in detail in upcoming slides. Income tax is the total of deferred tax and current tax. Let's understand accounting profit, taxable profit with the help of an illustration. The company purchased a machinery for 1 lakh. At the end of year 1, the following information is available. Depreciation as per books is 10,000. Depreciation allowed as per Income Tax Act is 30,000. Profit before depreciation and tax is 1,10,000. And income tax rate given is 30,000. तो इसमें accounting profit जो है, it will be profit before tax and depreciation, that is 1,10,000 less book depreciation. Depreciation that is allowed as per the accounting standard 10,000. तो accounting profit आ जाएगा 1 lakh. Taxable profit. Taxable profit में again profit before depreciation and tax 1,10,000 और उसमें से हम लेस करेंगे depreciation that is allowed as per the income tax rules, that is 30,000. तो taxable profit हो जाएगा 80,000. अब current tax जो है वो taxable profit पे calculate होगा, तो 30% of taxable profit 24,000 is current tax. Current tax accounting treatment and measurement. Measurement of the current tax. Current tax को calculate करने के लिए जो tax rate हम use करते हैं, that tax rate should be the tax rate that is applicable in the current period. If any new tax rate is enacted or subsequently enacted by the end of the reporting period, but it is applicable in the next financial year, तो हम उस tax rate को नहीं use करेंगे current tax को calculate करने के लिए. अब current tax का accounting treatment. If current tax is calculated on an item which is an item of P&L, so current tax will also be recognized in P&L. If it is calculated on an item which is an item of OCI, so current tax on that item will also be recognized in OCI. And there's a question for online participant. Max Limited has taxable profit of 10 lakhs for the year ended 31st March 2025. The applicable income tax rate was 25% during the year. On 20th March, a new tax rate of 30% was enacted, which will be effective from the next financial year. Which tax rate should be used to measure the current tax liability for the year? Option A, 25% as it is applicable for the current year. Option B, 30% as the rate has been enacted before the balance sheet date. Option C, average rate of 27.5%. Option D, 30% only for deferred tax and not for current tax. दमन जाजू. माइक ऑन करो अपना. नमन.
सिस्टम चेंज किया उसकी वजह से प्रॉब्लम आई है कुछ। नहीं, मैंने यहाँ से परमिशन दे रहा हूँ यहाँ से। वो हाथ नहीं होता होगा। नमन जाजू, ठीक है ये। सही है, ओके। ये तुम जो पहले कर देते हो ना, ये तूने क्या कुछ सेटिंग ऐसे करी है कि हाँ, वो मतलब वहां से खुद वो मैं टाइम लगता है। This A is the correct answer. तो थोड़ा सेटिंग वो ठीक है, थोड़ा बहुत बीच में करते रहना बच्चे। के लिए हम सर- ACI में लिखेंगे, और चिंता मत कर। तूने ये सेटिंग गलत चेंज किया आज। हाँ। Next, deferred text. अब deferred text का recognize measurement उसके presentation के लिए we follow a 9-step approach and we will be अभी ये स्टेप जो है हम आगे वाली स्लाइड्स में कवर करेंगे। सो स्टेप 1, कंप्यूटिंग द कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। अब एज पर AS 22 जब हम DT या फिर DTL रिकॉग्नाइज करते थे तो हम PNL अप्रोच फॉलो करते थे, बट इन इंडियस 12 हम बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं। अब बैलेंस शीट अप्रोच में टेम्पररी डिफरेंस निकालने के लिए वी नीड टू कंपेयर करंट कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी एंड इट्स टैक्स बेस। तो फर्स्ट स्टेप इज कैरिंग अमाउंट ऑफ असेट एंड लायबिलिटी। इट इज द बैलेंस ऑफ दैट असेट एंड लायबिलिटी एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एज पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स। Step 2 is compute tax base. अब tax base जो है that will also be the carrying amount of asset and liability but calculated as per the taxation ये laws. आपका जो AS 22 है ना, उससे बिल्कुल डिफरेंट है ना। AS 22 आप सबने पढ़ा है, तो दैट वाज बेसिकली बेस्ड ऑन विच अप्रोच? दैट इज कॉल्ड इनकम अप्रोच, और हियर इट इज बैलेंस शीट अप्रोच। तो ये बैलेंस शीट अप्रोच को एक्सप्लेन कर रही है, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले थोड़ी पढ़ा हुआ है इंडेस 12 अपन ने पढ़ा हुआ है, कई लोगों ने, कुछ लोगों ने पढ़ा हुआ होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, और हमें सब काफी कॉम्प्लेक्स रहता है टू अंडरस्टैंड द इंडेस 12। तुम्हें पहली बार पढ़ा है? नहीं, मतलब मैंने क्लास ली रखी क्लास ले रखी, समझ में आ गया अब तेरे को किसकी क्लास ली है? FR की, मतलब नहीं, कौन है? आकाश सर, आकाश कंदोई सर। आकाश नंबर सर, चलो ठीक है। Let's understand this with the help of an example. अब फॉर एग्जाम्पल हमने एक मशीनरी परचेज करी 1 लाख रुपीज की, तो कैरिंग अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी 1 लाख एंड फॉर द टैक्सेशन लॉस इट विल आल्सो बी 1 लाख रुपीज। अब इसमें से हम डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, तो फॉर एग्जाम्पल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग हमारा जो डेप्रिसिएशन अलाउेबल है वो है 40,000 रुपीज। तो हमारा कैरिंग अमाउंट एज पर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो जाएगा 1 लाख माइनस 40,000 विच इज 60,000। अब हम टैक्सेशन की बात करें तो इसमें मशीनरी की कॉस्ट जो है वो 1 लाख है, इसमें डेप्रिसिएशन जो अलाउ है एज पर द टैक्सेशन रूल्स इट इज 50,000 रुपीज। तो हमारा कैरिंग अमाउंट एज पर द टैक्सेशन लॉस या फिर टैक्स बेस इट इज 50,000 रुपीज। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ द कैरिंग अमाउंट एंड टैक्स बेस। अभी जो डिफरेंस है इट कुड बी ऑफ 2 टाइप्स। फर्स्ट इज परमानेंट डिफरेंस एंड सेकेंड इज टेम्पररी डिफरेंस। अब परमानेंट डिफरेंस वो डिफरेंस होता है, परमानेंट डिफरेंस और टेम्पररी डिफरेंस का कॉन्सेप्ट इंडेस में है ही नहीं, नहीं है वहां पे। परमानेंट एंड यहाँ है टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस, टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस एंड डिडक्टेबल टेम्पररी। that will be covered in next. हाँ, permanent and timing difference concept is not there. There is no word permanent difference written in the Indies 12. हाँ, ये आप समझ लो। परमानेंट डिफरेंस का कॉन्सेप्ट क्या है? वो एस में, एस 22 में इंडेस को डिजाइन इस तरीके से किया हुआ है कि परमानेंट डिफरेंसेस जो है वो जो एज पर एस 22 परमानेंट वो ऑटोमेटिकली उसमें कंसीडर ही नहीं होते। दैट इज हाउ इट हैज बीन डिजाइन। क्यों? क्योंकि इन्होंने क्या कहा है, ये दे आर गोइंग थ्रू बैलेंस शीट अप्रोच। तो बैलेंस शीट अप्रोच के अंदर जितने भी तरीके के डिफरेंसेस हैं विच आर टैक्सेबल एंड डिडक्टेबल वो ऑटोमेटिकली कंसीडर हो रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ डेफर्ड टैक्स कंप्यूटेशन। तो जब डिडक्टेबल और टैक्सेबल डिफरेंस ऑटोमेटिकली कंसीडर हो गए फॉर द पर्पस ऑफ डेफर्ड टैक्स डिफरेंसेस, तो परमानेंट वाले जो है वो ऑटोमेटिकली नहीं हुए, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग इनटू द डेफिनेशन ऑफ डिडक्टेबल एंड टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंस। तो ये permanent difference use of the word permanent difference in this presentation is not correct. Whenever we are saying Ind AS 12,
दिस परमानेंट डिफरेंस व्हाट शुड नॉट बी देयर। और ये पूरी थ्योरी क्या है इंडेस की, क्या क्या कॉन्सेप्ट है? आप लोग 2 लोग 5 लोग दोस्त लोग कभी जाते हो ना आप, तो क्या करते हो? खाना खाने जाते हो या नहीं जाते हो? लंच करने गए या कभी डिनर डेट पे, या कोई गया या नहीं गया? नहीं गए ना? गए, डेट पे नहीं गए लेकिन लंच लंच पे तो गए ना। तो लंच पे आप गए तो क्या किया आपने? 5 जने गए जी, आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, यही करते हो, है ना? और सपोज 2 लोग जाते हैं और लंच पे गए, क्या करेंगे वो? 2 में से एक जना पेमेंट करेगा, है ना? तो वो दोनों मान लीजिए कि दोस्त हैं, तो एक जना पेमेंट किया, अगली बार वापस गए तो क्या होगा? तो पेमेंट कौन करेगा? दूसरा ही करेगा, नहीं तो फिर रोज रोज एक ही जना पेमेंट करता गया तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो दोस्ती खत्म हो जाएगी, है? तो जो पहली बार गया वो क्या होगा? पहली बार जो गया उसको पता है कि यार अगली बार यहाँ 2000 रुपए खर्च होंगे, तो आई विल रिकवर बिकॉज ही विल पे। यही हो रहा है। तो फर्स्ट टाइम जिसने पेमेंट किया, 2 जने गए, 2000 रुपए लगे, जिसने पेमेंट किया वो क्या करेगा? ही विल रिकॉग्नाइज डेफर टैक्स एसेट, कि भैया इससे मैं आगे जाकर के, और डेफर टैक्स एसेट मतलब डेफर्ड एसेट, यहाँ टैक्स नहीं है, यहाँ पेमेंट किया, तो ही विल रिकॉग्नाइज later. एसेट। और जो उसके साथ में गया वो क्या रिकॉग्नाइज करेगा? ही विल रिकॉग्नाइज लायबिलिटी। अभी नेक्स्ट टाइम होगा वापस, तो क्या होगा? नहीं नहीं, जिसने लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करी वो उसको पेमेंट कर देगा, और जिसने एसेट रिकॉग्नाइज करी वो रिकवरी बताएगा। सो दैट इज हाउ दिस अकाउंटिंग विल बी डन ऑफ द टेम्पररी डिफरेंसेस विच आर देयर, है ना? अब वो जो 2 लोग गए, वो सपोज आगे जाकर के, और दे आर गोइंग टू मैरी, लड़का और लड़की दोनों साथ गए, अब कौन भुगतान करेगा? है? तो जिसने भी पेमेंट किया, क्या होगा ये? है? क्या वहां पे अपन आगे जाके रिकवरी करेंगे? तो दैट इज परमानेंट डिफरेंस, उसका कोई डेफर्ड टैक्स एसेट और लायबिलिटी रिकॉग्नाइज नहीं करना। यही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी यही कहता है। डिपार्टमेंट क्या कहता है? देखिए, व्हाट द होल कॉन्सेप्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ मैचिंग, मैचिंग कॉन्सेप्ट बोलते हैं ना अपन। तो वो ये कह रहे हैं कि साहब, आपका कंपनी लॉ में जो भी प्रॉफिट आपने रिकॉग्नाइज किया है एज पर द कंपनीज एक्ट, that profit should be whatever tax liability is there on that profit should be recognized, है ना? अब मान लीजिए कि कोई प्रॉफिट आप उसके ऊपर टैक्स का पेमेंट डेफर कर देते हो। कब होता है डेफर? जैसे डेप्रिसिएशन है ना? इनकम टैक्स में अपन ज्यादा रेट पे चार्ज करते हैं, तो हमने क्या किया, हमारे जो अकाउंटिंग प्रॉफिट डिस्क्लोज किया हुआ है उसके ऊपर अपन टैक्स नहीं दे रहे, तो दैट मीन्स वी हैव टू रिकॉग्नाइज लाइबिलिटी। जब भी अपन टैक्स में ज्यादा डेप्रिसिएशन क्लेम कर रहे हैं, और कंपनीज एक्ट में अपन ने डेप्रिसिएशन कम बता रखा है, मतलब प्रॉफिट ज्यादा बता रखा है, तो हम कहेंगे कि साहब इसके ऊपर आगे जाकर के मुझे कभी ना कभी तो टैक्स देना है ना। सो दैट इज वाई दे से कि आपको ये जो प्रॉफिट आपने कम दिया है, ये जो डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया है, ये क्योंकि कम पे किया है, तो आगे जाकर के देयर विल बी सम लायबिलिटी ऑन दिस अकाउंट, so therefore you need to recognize the deferred tax liability on this। तो ये इस तरीके के आपको
क्योंकि डिपार्टमेंट जो है वो हमेशा जो भी आपका प्रॉफिट होगा अल्टीमेटली दे विल टेक द टैक्स। और यहाँ पे जब इन्होंने बैलेंस शीट अप्रोच में ये कंपटीशन की बात कही तो अपन देखेंगे इसको, ये जो कैलकुलेट ये जो बताएगी कि इन्होंने इसको डिजाइन इस तरीके के किया है कि परमानेंट डिफरेंसेस जितने भी हैं वो इस कंपटीशन में आते ही नहीं है। तो दे हैव नॉट सेपरेटली डिफाइंड दैट दीज आर द परमानेंट डिफरेंसेस। बताओ। Temporary differences. These differences arises because of timing difference in recognition of income or expense in books and for tax. These differences reverse in one or more future period. इसके लिए इसी वजह से हम इस पे ऊपर DT या डिटेल रिकॉग्नाइज करते हैं। तब ये जो टेम्परेरी डिफरेंसेस है, these are classified into two types: taxable temporary difference and deductible temporary difference. अब in case of asset, अगर carrying amount of the asset is more than its tax base, तो taxable temporary difference create होगा. If carrying amount of the asset is less than its tax base, तो deductible temporary difference create होगा. In case of liability, if carrying amount is more than its tax base, it will be a deductible temporary difference, and if carrying amount is less than its tax base, so it will be a taxable temporary difference. अब in case of taxable temporary difference हम detail recognize करते हैं. ऐसा क्यों? Because in the current period the entity has paid less tax, which means in the future period entity को ज्यादा tax pay करना पड़ेगा. तो इसके लिए हम अभी यहाँ पे liability recognize करेंगे. Similarly in case of deductible temporary difference, अभी entity ने ज्यादा tax pay कर दिया और in the future company will be paying less tax. तो यहाँ पे हम deferred tax asset recognize करेंगे. Let's understand this with the help of an illustration. Will Limited prepare its financial statements as per Ind AS. The following information is available as on 31st March. The applicable income tax rate is 30%. First, plant and machinery has a carrying amount of 10 lakhs in the books of accounts. Its tax base is 6 lakh due to high depreciation claimed under the Income Tax Act. तो इस केस में प्लांट एंड मशीनरी का जो कैरिंग अमाउंट है इट इज 10 लाख, उसका टैक्स बेस जो है वो है 6 लाख. तो कैरिंग अमाउंट इज मोर देन इट्स टैक्स बेस, तो यहाँ पे जो डिफरेंस क्रिएट होगा इट विल बी टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस. और टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस की केस में हम डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करेंगे. सेकंड केस है provision for doubtful debts of 1,50,000 is recognized in the books of accounts. This provision is not allowed as a deduction for tax purposes until the debt is actually written off. In this case, जो carrying amount है liability का in the books of accounts, it's 1,50,000. However, as for the tax purposes, the tax base is 0. The carrying amount of the liability is more than its tax base. In that case, deductible temporary difference create होगा. And in case of deductible temporary difference, हम deferred tax asset recognize करेंगे. Third, penalty of 50,000 paid under the Income Tax Act has been debited to statement of P&L account. The same is permanently disallowed for tax purposes. So in this case, no detail will be recognized क्योंकि इस expense का future में reversal होगा ही नहीं. Question for offline participants. The company earns 5 lakh from agriculture income, which is fully exempt from income tax. According to Ind AS 12, how should deferred tax be treated? Option A, recognize DTA. Option B, recognize DTL. Option C, no DTA and DTL will arise. And option D, recognize both DTA and DTL for future periods. C. No detail. देखो आप लोगों को हाथ खड़ा करना चाहिए सबको, ये सब मैं बताऊंगा. Step 5, assess detail recognition. तो जो deferred tax liability होती है हम उसको हर केस में recognize करते हैं. But for the recognition of deferred tax asset, 3 conditions are given, जो कि one of the condition needs to be satisfied in order to recognize DTA. अगर तीनों में से एक भी condition satisfy नहीं हो रही है तो we will not recognize DTA. First condition है कि there should be a probability of future profits. अगर फ्यूचर में sufficient taxable profits available है then only DTA will be recognized. Second, reversal of DTL. If in the future DTL का reversal हो रहा है then we can recognize the DTA. और third है availability of the tax planning opportunity, जिसकी वजह से फ्यूचर में प्रॉफिट्स हो सकते हैं. While calculating the deferred tax asset, जो भी पुराने carry forwarded losses हैं, we will also take into account those carry forward losses in order to calculate the DTA. Reassessment of the unrecognized DTA.
At the end of each year, entity should reassess unrecognized DTA. अगर entity ने current year में कोई DTA recognize नहीं करा because none of the conditions were satisfying, तो next year जो है entity सारी conditions को वापस देखेगी. If any of the condition is now satisfied, तो entity will recognize a previously unrecognized DTA to the extent it has now become probable that future taxable profit will be available for DTA to be utilized. Now, there is an extract of notes of financial statements of Airtel is given. In this case, they have also disclosed that they did not have sufficient taxable profits in the future, due to which उन्होंने carry forward losses of 68,710. They have not recognized the DTA on those carry forward losses. Question for the online participant. Jim Limited has a deferred tax asset. Pulkit Mittal. Jim Limited has a deferred tax asset arising from deductible temporary differences amounting to 5 lakh, taxable at 30%. The DTA is expected to reverse. The DTA is expected to reverse equally over 4 years. ABC Limited also has DTA arising from taxable temporary differences, which will reverse only in the first 3 years. The company has no history of taxable profit, no convincing evidence of future taxable profit, and no tax planning opportunity. Which of the following is the correct treatment for recognition of DTA as per Ind AS 12? Option A, no DTA should be recognized as none of the recognition conditions are satisfied. Option B, full DTA of 1,50,000 should be recognized. Option C, DTA should be recognized only to the extent of reversal of DTA, that is 3 years. And option D, DTA should be recognized only after company starts earning taxable profits. Pulkit. Option C. Sorry. Correct. Step 6, determine the tax rate for deferred tax. Now, unlike current tax में हम जिस रेट पे करंट टैक्स में हम वही टैक्स रेट यूज करते थे, दैट इज एप्लीकेबल फॉर आवर करंट पीरियड. बट डेफर्ड टैक्स जो है, दीज आर फ्यूचर टैक्सेस जो फ्यूचर में जाके रिवर्स होंगे. सो देयरफॉर इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द डेफर्ड टैक्स, हम जो टैक्स रेट यूज करेंगे, it should be the tax rate that is expected to apply when the asset is realized or the liability is settled. For example, if a corporate tax rate changes from 25% to 30% during the current year, but 30% rate is applicable in the next financial year, for calculating the deferred tax, we will use 30% rate. Step 7, calculate and recognize the deferred tax. Deferred tax asset को calculate करने के लिए we will multiply deductible temporary difference into tax rate that is calculated as per step 6. And for recognizing DTL, हम multiply करेंगे deferred tax taxable temporary difference को tax rate that is calculated as per tax step 6. No discounting is allowed for deferred tax balances. Step 8, accounting for deferred taxes. So similarly to current tax, if deferred tax is calculated on an item which is an item of P&L, so deferred tax will recognize in P&L. If it is calculated on an item which is an item of OCI, so deferred tax भी OCI में ही recognize होगा. In case of business combination, deferred tax जो होगा वो goodwill से adjust होता है, which will be covering in upcoming slides. Question for online participant. A Limited Devanshu. A Limited recognizes interest income on an accrual basis in its books, whereas for income tax purposes, interest income is taxable on a cash basis. As at 31st December, interest receivable of 10,000 is recognized in the books. The income tax rate applicable as at that date is 25%. A change in tax rate of 30% is proposed on 20th February and enacted on 21st May 2022. The financial statements for the year ending 31st December 2021 are approved for issue on 31st May 2022. What is the correct deferred tax treatment as per Ind AS 12? Option A, no deferred tax is recognized as the interest is taxable only on receipt. Option B, DTL of 3,000 is recognized using the revised tax rate. Option C, DTL of 2,500 is recognized using the tax rate applicable as at reporting date. And option D, DTA of 2,500 will be recognized. Devanshu. The answer is C. Deferred tax liability of 2,500 is recognized. Correct. Can you explain the reasoning?
यस सर, जो इंटरेस्ट रिसीवेबल है वो अपन अकाउंट्स में बुक कर लेंगे एसेट, बट टैक्स की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो अपन डीटीए को असेट को कम करेंगे तो डीटीएल क्रिएट करेंगे 10,000 इंटू 25%। Why 25%? Why not 30%? सर जो 30% है वो एप्लीकेबल बाद में है रेट। But financial statements are approved on 31st May 2022. And सर वो tax ईयर rate आफ्टर is है ना, ये मतलब एडजस्टिंग इवेंट नहीं होता है। it is not an adjusting event. पक्का? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही। चलो ठीक है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा मुझे लग रहा है कि अगर टैक्स रेट से ज्यादा चेंज आए तो डिस्क्लोजर देना पड़ता है। नहीं, बेसिकली you know whenever any rate change in rate is announced, any tax provisions are announced, तो बाकी लोग इससे सहमत है या क्या है? आंसर शुड बी बी। सर इस केस में प्रपोज भी बाद में हुआ है। हमको करंट फाइनेंशियल में पता ही नहीं था कि नेक्स्ट जो टैक्स रेट है वो चेंज। नहीं, आपका फाइनेंशियल ईयर कब एंड हो गया? 31 दिसंबर। मार्च, अच्छा दिसंबर 2011 में हो गया, और ये आया है 2020, और बट बिफोर द इश्यू ऑफ द अप्रूवल ऑफ दिस। रिपोर्टिंग डेट तक देखते हैं, अगर वहां तक नई डेट आ गई तो अपन उसको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज ऐसा है, एक बार चेक करेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इफ यू नो रेट इज अनाउंस्ड, है ना, मे नॉट बी अप्रूव्ड बट रेट इज अनाउंस्ड, so in that case the it will be considered as adjusting event. But you are saying that it is not, it is after 31st December and no, date is not 31st March. अगर मान लो 28 फरवरी को बजट आता और 31 मार्च को होता तो तुम्हारा जो हम कह रहे हैं वो ठीक होता। चलो एक बार इसको चेक करना पड़ेगा। ठीक है। स्टेप 9 ऑफसेटिंग डीटीए एंड डीटीएल। तो डीटीए को अपन डीटीएल से ऑफसेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड वी हैव लीगली इन्फोर्सेबल राइट टू डू सो एंड बोथ ऑफ देम pertain to same taxing authority. Practical application and exceptions. First, business combination. When a business is acquired, जो उसकी asset and liabilities है, we recognize them at the fair value. But however, जो कि हमारी जो tax base रहेगा, it will remain original cost to the previous owner. So because of this, temporary difference will arise and temporary difference will arise, और इसके लिए हम DTA recognize करेंगे. This DTA detail will be adjusted through goodwill. Question for online participant. L Limited acquires control over B Limited through a business combination. At the acquisition date, certain identifiable assets of B Limited are recognized at higher amount than their tax base due to fair value adjustment made by A Limited. The resulting difference is taxable in nature. Applicable tax rate is 25%. How should A Limited account for the deferred tax arising from the above difference? कुशल सोमानी। Option D, recognize deferred tax and adjust it against goodwill arising from the business combination. What is the logic? Business combination में अगर कोई कुशल। Kushal, what is the logic behind your answer? Sir, because a business combination के अंदर हम हमेशा deferred tax को adjust ही करते हैं हमेशा goodwill के against में। तो यही लिखा हुआ है तो तुम बोल रहे हो। चलो ठीक है। सेकेंड इज एसेट एक्विजिशन। तो इनिशियली जब कंपनी न्यू एसेट एक्वायर करती है तो उसका कैरिंग अमाउंट फॉर द इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज वेल एज फॉर द टैक्स पर्पसेस इट्स सेम। तो यहाँ पे ना डिटेल रिकॉग्नाइज होगा ना डीटीए रिकॉग्नाइज होगा। थर्ड इज शेयर बेस्ड पेमेंट। कंपनी है, इट माइट रिकॉग्नाइज एन एक्सपेंस फॉर शेयर बेस्ड पेमेंट ओवर द वेस्टिंग पीरियड फॉर अकाउंटिंग पर्पस, बट द टैक्स डिडक्शन इज ओनली अवेलेबल ऑन द एक्सरसाइज डेट, ड्यू टू विच यहाँ पर भी डिटेल रिकॉग्नाइज हम करते हैं। Fourth is investment in subsidiary branches, associate and joint ventures. Investment in subsidiaries, branches and associate and joint ventures को हम carrying amount पे book करते हैं in our financial statements.
बट फॉर एग्जाम्पल इफ हमारी 100% ओन सब्सिडरी है, अगर उसका कोई प्रॉफिट उसने जनरेट करा, फॉर एग्जाम्पल 100% ओन सब्सिडरी ने 2 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट करा, तो इस केस में हमारा जो कैरिंग अमाउंट हो जाएगा एज पर द फाइनेंशियल, वो हो जाएगा that would increase by 2 crore. But since this amount is not distributed by the subsidiary, तो टैक्स बेस जो है हमारा ओरिजिनल रहेगा, तो यहाँ पे भी डीटीओ डिटेल जो है वो क्रिएट होगा. कंडीशंस फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग डेफर्ड टैक्स. अगर इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, इन्वेस्टमेंट इन एसोसिएट और इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर्स में ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, तो यहाँ पे हम डिटेल रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे. तो फर्स्ट है इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी. If the parent controls the dividend policy of the subsidiary, or if the parent has determined that in the foreseeable future वो investment को sell नहीं करेगा, तो यहाँ पे डिटेल recognize नहीं होगा. In case of associate and joint ventures, if all the parties collectively decide to not distribute the dividend in the foreseeable future, तो यहाँ पर भी डिटेल recognize नहीं होगा. Question for the online participant. ABC Limited acquired 100% shares of XYZ Limited on 1st April. As at 31st March, XYZ Limited has undistributed profits of 5 crore. Under the tax laws, the tax base of the investment is continued to be the original cost. The applicable dividend distribution tax rate is 15%. Which of the following is correct deferred tax treatment in the books of ABC Limited as per the Ind AS 12? Option A, recognize detail of 0.75 crore. Option B, recognize DTA of 0.75 crore. Option C, do not recognize any DTA or DTL because ABC Limited controls the timing of dividend distribution. On option D, recognize DTL only when dividends are actually declared. फर्स्ट बना दिया. Option C. Do not recognize DTL. Correct. Now at the last, we have key differences between AS 22 and Ind AS 12. फर्स्ट है अप्रोच फॉर क्रिएटिंग डेफर्ड टैक्स. इन Ind AS 12 हम बैलेंस शीट अप्रोच फॉलो करते हैं. इन AS 22 वी फॉलो इनकम स्टेटमेंट अप्रोच और P&L अप्रोच. सेकेंड है लिमिटेड एक्सेप्शंस फॉर रिकॉग्निशन ऑफ DTA. इन Ind AS 12 हमारे पास 3 कंडीशन स्पेसिफाइड है. उन तीनों में से एक कंडीशन को फुलफिल होना इज इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज DTA. बट इन केस ऑफ AS 22, reasonable certainty that sufficient future taxable income will be available, ये कंसिडर करके हम DTA रिकॉग्नाइज करते हैं. थर्ड, रिकॉग्निशन ऑफ करंट एंड डेफर्ड टैक्स. करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स को भी रिकॉग्नाइज इन P&L इफ द आइटम ऑन विच दीज आर कैलकुलेटेड इज एन आइटम ऑफ P&L. अगर ये OCI का आइटम है तो हम करंट और डेफर्ड टैक्स को OCI में रिकॉग्नाइज करते हैं. बट AS 22 डज नॉट डील विद दिस एस्पेक्ट. फोर्थ, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एसोसिएट एंड जॉइंट वेंचर्स. इन Ind AS 12, DTL is recognized. DTL is recognized in the temporary differences arises from the investment in subsidiary, associate and joint ventures. However, AS 22 does not deal with this aspect. Fifth, DTL arising out of evaluation of asset. In case of Ind AS 12, deferred tax for, we will recognize the deferred tax at the tax rate of capital gain. However, AS 22 does not deal with this aspect. Sixth, guidance for recognition of deferred tax in tax holiday period. AS 22 स्पेसिफिकली प्रोवाइड गाइडेंस फॉर टैक्स हॉलीडेज. जहाँ पे टैक्स हॉलीडेज होगा वहाँ पे डिटेल को कैसे रिकॉग्नाइज करना है. हाउएवर Ind AS 12 में ऐसा कोई भी गाइडलाइंस नहीं प्रोवाइडेड. थैंक यू. दैट्स ऑल. तो अकॉर्डिंग टू यू, अगर प्रैक्टिकल सिनेरियो में बात करें, इन्होंने यहाँ डिफरेंसेस बता दिए. कहाँ डिफरेंसेस आ सकते हैं? सोचा आपने? हैं? बता दिया सबको. कहाँ डिफरेंसेस आ सकते हैं इन AS 22 एंड Ind AS 12? ऐसी कौन सी आइटम्स हैं? अगर देखा जाए तो बैलेंस शीट अप्रोच में जाओ या इनकम अप्रोच में जाओ, सब जगह डिफरेंस कहाँ आ रहा है? नहीं, डिफरेंस कहाँ आ रहा है? जैसे अपने एक क्लाइंट के अंदर उन्होंने असेट्स को रीवैल्यू किया हुआ है ना, और रीवैल्यू करके और दे हैव शोन इट एज रिवैल्यूएशन रिजर्व या रिवैल्यूड अमाउंट पे उन्होंने उस असेट को दिखाया हुआ है.
तो जो रिवैल्यूड अमाउंट भी उस एसेट को दिखाया हुआ है ना, इट इज ए से प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड मान लीजिए आप, लैंड को रिवैल्यू पे दिखा रखा है। तो लैंड की कॉस्ट क्या है, से कॉस्ट इज 100, व्हाट इज रिवैल्यूड अमाउंट 1000, यही है ना। तो अब इसको डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी या डेफर्ड टैक्स एसेट कुछ रिकॉग्नाइज करना चाहिए क्या? क्या बताओ भाई, तुमने पता है सर करना चाहिए। कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और क्या अपना जो प्रेजेंट एज है उसमें होता है क्या? इंडेक्स 12 में तो होना चाहिए, क्योंकि रिवैल्यूएशन की वजह से कैरिंग अमाउंट इंडेक्स 12 में होना चाहिए। होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और जो कैरिंग अमाउंट है वो ज्यादा है तो डिटेल रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ये कह रही है कि आप खुद कह रहे हो कि ये जो असेट है ना, एस में तो अपन उस असेट को 100 रुपए भी रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, और अगर 1100 भी कर रहे हैं तो बैलेंस शीट आइटम की वजह से अपन किसी तरीके का कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं टैक्सेबल टेम्पररी डिफरेंसेस का। बट यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हम कह रहे हैं कि साहब ये एसेट मेरी 1000 रुपीज की वैल्यू है, मैंने खरीदी इसको 100 रुपए पे, लेकिन मैं खुद ये मान रहा हूँ, आई एम माई सेल्फ इज अज्यूमिंग कि ये जब भी कभी इसको मैं बेचूंगा तो मुझे 1000 रुपए मिलेंगे, ठीक है। जबकि उसके ऊपर डिडक्शन कितना मिलेगा आपको? आपको डिडक्शन आपको उसका 100 रुपए ही मिलेगा। तो ऑन दैट 900 रुपीज यू आर रिक्वायर्ड टू पे टैक्सेस इन फ्यूचर। आप उसको बेचोगे या नहीं बेचोगे पता नहीं है, लेकिन जब भी बेचोगे तो आपको उस 900 रुपए पे टैक्स पे करना पड़ेगा। सो देयरफॉर यू आर रिक्वायर्ड टू रिकॉग्नाइज द डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। तो ये जहां पे फेयर वैल्यूएशन हो रहे हैं ना, मेजर डिफरेंसेस वहां आ रहे हैं। आप फाइनेंशियल एसेट को फेयर वैल्यू कर रहे हो तो एक्चुअल में आप टैक्स नहीं दे रहे हो, बट मोमेंट यू फेयर वैल्यू द फाइनेंशियल एसेट्स, फेयर वैल्यू थ्रू प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल एसेट को करते हैं आप। तो जिसने मान लीजिए कि शेयर्स खरीदे और जिस कॉस्ट पे खरीदे और जो फेयर वैल्यू आया वो ज्यादा है, तो आप प्रॉफिट बुक कर रहे हो in your profit and loss. So there, when you will be computing income tax, you are not going to pay actual tax. But since you have shown that profit in your profit and loss, you are required to book the deferred tax liability. और फेयर वैल्यू की जगह अगर लॉस आ गया है तो आपको उस लॉस का अल्टीमेटली कोई ना कोई क्रेडिट मिलेगा। तो लॉस आ गया तो आपको डेफर्ड टैक्स एसेट भी रिकॉग्नाइज करना पड़ सकता है। तो मेजरली wherever there are fair valuation of assets and liabilities, deferred tax assets or liability will come into picture, है ना। और जहां पे एसेट का सेल है तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जैसे लैंड का मैंने बात किया, तो अपन को ये देखना पड़ेगा कि क्या आगे जाके कैपिटल गेन टैक्स होगा, तो फिर रेट वो लेनी पड़ेगी, अदरवाइज वी विल टेक दी नॉर्मल रेट ऑफ टैक्सेस। So this is one major difference, particularly which comes because of the fair valuation. और उसके अलावा जब बिजनेस कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं तब टैक्स आ रहा है, एंड देन व्हेन वी आर कंसोलिडेटिंग समथिंग और वहां सब्सिडरी से डिविडेंड आ रहा है, इफ इट इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड, so then this deferred tax asset or liability is required to be recognized. Yes, thank you. नाम से जैन को क्या हो गया? Hello everyone, my name is Dimple Harchandani and I will be covering two Ind AS, Ind AS 41 Agriculture and Ind AS 20 Government Grant. Let's get started with Ind AS 41 Agriculture. सबसे पहले कुछ टर्म्स अपन अंडरस्टैंड करेंगे। बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट में बेसिकली दो चीजें होती हैं, लिविंग एनिमल और प्लांट। और प्लांट के दो कैटेगरीज होते हैं, बेयर प्लांट और नॉन बेयर प्लांट। बेयर प्लांट क्या होता है? लिविंग प्लांट्स विच इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एग्रीकल्चर प्रोड्यूस फॉर मोर देन वन पीरियड and is not likely to be sold as agriculture produce.
कोई ऐसा प्लांट जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस करता है फॉर मोर देन 1 ईयर, मतलब जिसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है और वो खुद एज अ प्रोडक्ट मार्केट में सेल नहीं होता अनटिल अनलेस इसको स्क्रैप में बेच रहा है। एग्जाम्पल टी बुशेस, ऑयल पाम्स। बट नॉन बेरर प्लांट क्या होता है जिसकी लाइफ जो है वो लेस देन 1 ईयर होती है और वो खुद ही एज अ प्रोडक्ट मार्केट में सेल हो सकता है। एग्जाम्पल व्हीट क्रॉप, वो खुद ही मार्केट में सेल हो सकता है, तो वो नॉन बेरर प्लांट होता है। एग्रीकल्चरल एक्टिविटी क्या होती है? बेसिकली एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती है हार्वेस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एसेट for sale or conversion into agriculture produce. Example, growing dairy cattle for producing milk. Next, scope. क्या क्या चीजें इंडिया 41 में कवर होती है और क्या क्या नहीं होती? फर्स्ट इज बायोलॉजिकल एसेट्स रिलेटिंग टू एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। बायोलॉजिकल एसेट्स में अभी पढ़ा कि दो चीजें होती हैं, लिविंग एनिमल्स और प्लांट्स। और प्लांट्स की दो कैटेगरीज होती है, बेरर प्लांट और नॉन बेरर प्लांट। तो जो बेरर प्लांट होता है इट विल बी कवर्ड इन इंडिया 16, क्योंकि उसकी लाइफ जो है वो मोर देन 1 ईयर होती है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन असेट एंड इट विल बी कवर्ड इन इंडिया 16। सो बायोलॉजिकल तो इधर सिर्फ दो चीजें आएंगी, एनिमल्स और नॉन बेरर प्लांट्स। और ऐसे इसमें ये भी नहीं है कि एनिमल्स, सारे एनिमल्स इंडिया 41 में कवर होंगे, जो जो पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर एक्टिविटी से रिलेटेड है वही कवर होंगे इसमें। सेकेंड, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट, मतलब कोई भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो अपनी रॉ फॉर्म में है, वो इंडिया 41 में कवर होगा। अभी बाहर जाना था तो इधर ध्यान लगाना। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो रॉ फॉर्म में है वो इंडेक्स 41 में कवर होगा, बट जब वो आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट मतलब वो एकदम सेल होने के लिए रेडी है तब वो इंडेक्स 2 में कवर होगा। थर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटिंग टू असेट्स विच इज कवर्ड इन इंडेक्स 41, मतलब जो भी असेट्स जो जिन पे इंडेक्स 41 लग रहा है उस पे मिलने वाला गवर्नमेंट ग्रांट भी इंडेक्स 41 पे कवर होगा। एक्सक्लूड्स, क्या क्या चीजें एक्सक्लूड होती हैं? लैंड विच इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एक्टिविटी, वो इंडेक्स 16 में कवर होगा। बेयर प्लांट इंडेक्स 16 में। गवर्नमेंट ग्रांट्स लिंक टू बेयर प्लांट, क्योंकि बेयर प्लांट खुद इंडेक्स 16 में कवर होता है, तो उससे मिलने वाला तो उस पे मिलने वाला गवर्नमेंट ग्रांट भी इंडेक्स 20 में कवर होगा। इंटेंजिबल असेट्स इट विल बी कवर्ड इन इंडेक्स 38 एंड एग्रीकल्चर प्रोड्यूस आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट इंडेक्स 2। थर्ड, रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, जब तीन कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी तब अपन असेट्स और प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज करेंगे। फर्स्ट कंडीशन इज कंट्रोल ओवर असेट, एन एंटिटी मस्ट कंट्रोल द असेट एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट इवेंट्स, अपने पास असेट पे कंट्रोल होना चाहिए। सेकंड, उससे आने वाले फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स प्रोबेबल होने चाहिए। थर्ड, फेयर वैल्यू और कॉस्ट ऑफ द असेट मस्ट बी केपेबल ऑफ रिलायबली मेजर, मतलब फेयर वैल्यू और कॉस्ट अपन रिलायबली मेजर कर सकते हैं। जब ये तीन कंडीशंस पूरी हो जाएगी तब अपन असेट्स और प्रोड्यूस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। दीप्तांशु। An entity grows grapes. Grape vines last 25 years. Correct index. Option A, grapes at harvest index 2 and vines index 41. Option B, grapes at harvest index 41 and vines index 16. Option C, both index 41. Option D, both index 16. दीप्तांशु। Option B is अमृतांशु को नहीं बोला, दीप्तांशु बोला मैंने। प्रमोद दीप्तांशु। चलो अभी एक बार इनको बुला लेना दो। Yes, the answer is correct. चलो ठीक है। Option B. मेजरमेंट, बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को किस पे मेजर करेंगे? तो बायोलॉजिकल एसेट्स मेजर होगा फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल पे, बोथ एट इनिशियल रिकॉग्निशन एंड एट ईच रिपोर्टिंग डेट। बट अगर फेयर वैल्यू रिलायबली मेजर नहीं हो सकती तो इट कैन बी मेजर्ड एट कॉस्ट मॉडल। दो रीजंस की वजह से फेयर वैल्यू में चेंजेस हो सकते हैं, प्राइस चेंज और फिजिकल चेंज। वील टेक एन इलस्ट्रेशन ऑन दिस इन द नेक्स्ट स्लाइड। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में कोई एक्सेप्शन नहीं होता, इट विल ऑलवेज बी मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। और जब वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस एट द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट तो इंडेक्स 41 में कवर होगा, फिर आफ्टर द पॉइंट ऑफ हार्वेस्ट वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगा और वो उस पे जाएगा जो अपनी
उस डेट पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल है, उस पे वो इंडेक्स 2 में ट्रांसफर हो जाएगा। और दोनों ही केसेस में, बायोलॉजिकल एसेट्स में और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, जो भी चेंजेस होंगे फेयर वैल्यू में, इट विल बी ट्रांसफर्ड टू पीएन। Illustration on price and physical change. A farmer owned a dairy herd of 3 years old cattle as at 1st April 2021 with a fair value of 55 per cattle, and the number of cattle was 250. The fair value of 3-year cattle as at 31st March 2022 was 60 per cattle, and the fair value of 4-year cattle as at 31st March 2022 is 75 per cattle. Calculate the measurement of group of cattle as at 31st March stating price and physical change. तो एज ऑन 1st April 2021 अपनी फेयर वैल्यू हो गई 55 इंटू 250 विच इज 13,750। फेयर वैल्यू एज एट 31st मार्च हो गई। अब जो 3rd ईयर वाली कैटल है वो एट द एंड ईयर एंड 4 साल की हो गई, तो 75 इंटू 250 चेंज आया 5,000 का। अब इसमें फिजिकल चेंज और प्राइस चेंज कितना है? 31st मार्च 2022 को 3 ईयर कैटल की वैल्यू थी 60 पर कैटल और 4 ईयर कैटल की वैल्यू थी 75 पर कैटल। तो जो इसमें जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है, मतलब 15 रुपीज का जो चेंज है वो फिजिकल चेंज है। 15 इंटू 250 3750 विल बी फिजिकल चेंज। और 1st अप्रैल को कैटल की वैल्यू थी 55 पर कैटल और ईयर एंड पे सेम 3 ईयर ओल्ड की वैल्यू ही 60 पर कैटल, तो 5 रुपीज का चेंज हुआ प्राइस की वजह से। तो 5 इंटू 250 1250 will be price change. Second illustration, ABC Dairy Farm Limited measures its biological assets at fair value less cost to sell at as per Ind AS 41. On 1st April 2021, the farm had 10 cows, each having a fair value of 40,000. During the year, on 31st March, 2 calves were born. Fair value of each calf at birth was 15,000. Fair value of each cow on 31st March excluding calves was 42,000. तो इसका सॉल्यूशन है, वैल्यू ऑफ काउज एट ईयर एंड 42,000 वैल्यू है पर काउ की, तो फेयर वैल्यू हो गई 4,20,000। काव्स की वैल्यू हो गई 15,000 इंटू 2 30,000, तो फेयर वैल्यू एट ईयर एंड हो गई 4.5 लाख। अब फेयर वैल्यू एट बिगनिंग क्या थी? ऑन 40,000 थी पर काउ और काव्स तो थी नहीं 1st अप्रैल को, तो 4 लाख हो गई वैल्यू एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। इंक्रीज हुआ 50,000 का और इसकी फिर जर्नल एंट्री बनेगी बायोलॉजिकल एसेट्स अकाउंट डेबिट टू गेन, और गेन जाएगा पीएनएल में विच इज 50,000। नेक्स्ट, सम की कंसिडरेशन रिलेटेड टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अब ग्रुपिंग बायोलॉजिकल एसेट्स, ग्रुपिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस परमिसिबल टू फैसिलिटेट फेयर वैल्यू मेजरमेंट। अगर कोई फार्मर है जिसके पास कैटल का हर्ड है, उसमें बहुत सारी कैटल्स है, तो हर एक कैटल को मेजर करना पॉसिबल नहीं होता, तो कुछ क्राइटेरिया डिफाइन कर देते हैं एज के बेसिस पे या वेट के बेसिस पे, और उस पे अपन उन पूरे ग्रुप को क्लासिफाई कर सकते हैं। तो ग्रुपिंग ऑफ बायोलॉजिकल एसेट्स कैन बी डन streamlining the valuation process where appropriate. Second, contract price irrelevance, मतलब अगर contract price is generally not relevant in measuring fair value. अगर मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है तो जिस कॉन्ट्रैक्ट प्राइस जो है वो फ्यूचर प्राइस को डिनोट करती है, और अपन जो वैल्यू करते हैं बायोलॉजिकल एसेट को फेयर वैल्यू पे करते हैं। फेयर वैल्यू शुड रिफ्लेक्ट द करंट मार्केट वैल्यू, और जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है वो फ्यूचर प्राइस को रिफ्लेक्ट करती है। तो जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होती है उस पर अपन बायोलॉजिकल एसेट को वैल्यू नहीं कर सकते, अपन को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। फिर ऐसा कभी कभार ऐसा होता है कि अपन कोई बायोलॉजिकल एसेट है वो लैंड से अटैच्ड है, तो उसकी उस पर्टिकुलर की इंडिविजुअल फेयर वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता, तो अपन क्या करते हैं कि कंबाइन एसेट की फेयर वैल्यू ले ली, उसमें से लैंड की क्या फेयर वैल्यू है, लैंड की तो फेयर वैल्यू पता ही होगी, तो माइनस कर देते हैं, तो फेयर वैल्यू ऑफ बायोलॉजिकल एसेट अपन को मिल जाती है। ये 3 चीजें थी रिलेटेड टू फेयर वैल्यू मेजरमेंट। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट। Changes in fair value of biological asset between reporting periods are recognized in option A OCI, option B equity, option C PNL, and option D deferred income. भास्कर खंडेलवाल। Sir, answer is C, in profit or loss account. Correct. गवर्नमेंट ग्रांट्स रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एसेट्स। अब इसमें बेयर प्लांट से रिलेटेड जो भी गवर्नमेंट ग्रांट होगी वो इंड AS 20 में कवर होगी, क्योंकि बेयर प्लांट खुद भी इंड AS 16 में कवर होता है।
अब तो फिर इधर जो बात कर रहे हैं वो अपन नॉन बेयर प्लांट से रिलेटेड कर रहे हैं और एनिमल से रिलेटेड। अगर अपन ने वैल्यूएशन पढ़ा था अभी बायोलॉजिकल एसेट्स का, दो मॉडल फॉलो कर सकते हैं, कॉस्ट मॉडल और फेयर वैल्यू। अगर कॉस्ट मॉडल पे अपन बायोलॉजिकल एसेट्स को वैल्यू कर रहे हैं तो वो इंड AS 20 में कवर होगा। अगर अपन फेयर वैल्यू पे उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं बायोलॉजिकल एसेट्स पे तो इट विल बी कवर्ड इन इंड AS 41। इसमें दो केसेस होते हैं, अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो अगर ग्रांट कंडीशनल है। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो इट विल बी ट्रांसफर टू PNL एज एंड व्हेन इट इज रिसीव्ड। अगर ग्रांट कंडीशनल है तो फिर अपन PNL में उसको तभी ट्रांसफर करेंगे जब सारी कंडीशंस मेट हो जाएगी। बट इसमें एक एक्सेप्शन है, अगर ऐसा बोला है कि अगर ग्रांट आपको कंडीशनल ग्रांट मिली है और अगर आप उसका ब्रीच करते हो तो जो ग्रांट है वो पूरी रिफंडेबल होती है। अगर ग्रांट पूरी रिफंडेबल है तब तो आप PNL में तब ट्रांसफर करोगे जब सारी कंडीशंस फुलफिल हो जाए। लेकिन ग्रांट तब रिफंडेबल है, पार्शली रिफंडेबल है अगर आप ब्रीच करते हो कंडीशन का, तो फिर आप ओवर द टाइम पीरियड जैसे जैसे आप कंडीशन फुलफिल कर रहे हो वैसे वैसे आप PNL में डाल सकते हो। तो यही है, द टर्म्स ऑफ द ग्रांट अलाउज पार्ट ऑफ इट टू बी रिटेन्ड अकॉर्डिंग टू द टाइम elapsed. The entity recognize that part in PNL as the time passes. For example, a conditional grant may require an entity to farm in a particular location for 5 years and require the entity to return the entire grant. अगर breach हो जाएगा तो entire grant return करना पड़ेगा if it farms for a period shorter than 5 years. In this case अपन जो grant है वो PNL में तभी transfer करेंगे जब पूरे 5 साल complete हो जाए। इस पे एक illustration है related to government grant. Evergreen Dairy Limited is engaged in dairy farming and follows Ind AS 41. All biological assets are measured at fair value less cost to sale. Fair value less cost to sale जो measure कर रहे हैं अपन biological asset को, तो Ind AS 41 applicable होगा। On 1st April 2021, the company owned 50 cows. Fair value of each cow was 20,000. On the same date, the government sanctioned a grant of 6 lakh. Condition क्या attached थी? The entity must continue dairy farming for 3 years and in case of breach, refund the grant proportionately. The entity satisfy the condition evenly for 1 period. 3 साल की कंडीशन थी, 1 साल उसने फुलफिल करी कंडीशनर और अब उसने ब्रीच कर दिया और उसको ग्रांट जो है वो प्रोपोर्शनेटली रिफंड करनी है। तो अभी अपन ने पढ़ा था अपन प्रोपोर्शनेटली ग्रांट रिकॉर्ड कर सकते हैं PNL में, पूरी ग्रांट रिफंड नहीं करनी। तो टोटल ग्रांट क्या थी 6 लाख, तो 3 साल का पीरियड था, 2 लाख पर ईयर हो गया, तो अपन 2 लाख PNL में डाल देंगे, 4 लाख रिफंड कर देंगे। दिस अमाउंट इज रिकॉग्नाइज्ड इन PNL इन फर्स्ट ईयर। स्टेप 3, अनफुलफिल्ड पोर्शन कितना है 4 लाख एंड इट विल बी रिफंडेड टू द गवर्नमेंट। क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन सेकंड्स। A government grant is receivable if an entity plants trees and maintains them for 3 years. In case of breach, grant will be refunded fully. At the end of year 2, the entity should option A recognize full grant income, option B recognize proportionate grant income, option C do not recognize any grant income, and option D recognize as deferred income. कनिका कनिका मैं कौन करो अपना Sir, answer is option number B. Wrong. Option C, क्योंकि अपन को ग्रांट फुल। ऑप्शन डी क्यों बोल रहे हो आप? कनिका Yes, sir. ऑप्शन डी क्यों बताया? सर ऑप्शन बी बोला था मैंने। डी वो भी गलत है। कनिका भी बोल चलिए ठीक है, ऑप्शन सी आंसर इज ऑप्शन सी, नॉट रिकॉग्नाइज। यस, क्योंकि ग्रांट जो है वो फुल्ली रिफंडेबल है। अगर प्रोपोर्शनेटली रिफंडेबल होता तो होता ऑप्शन बी, लेकिन अगर ग्रांट फुल्ली रिफंडेबल है तो अपन जब पूरी 3 साल कंडीशन फुलफिल कर लेंगे तब ट्रांसफर होगी। तो आंसर इज सी। दिस इज इंड AS 41। इंड AS 20 अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। दो चीजें होती हैं इस इंड AS में, अकाउंटिंग गवर्नमेंट ग्रांट की और डिस्क्लोजर गवर्नमेंट असिस्टेंस का। तो फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है इसमें, दैट देयर आर टू थिंग्स व्हिच आर कवर्ड। वन इज अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट, अदर इज डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस। तो कई बार अपन गवर्नमेंट असिस्टेंस की बात भूल जाते हैं, दैट इज द सेकंड लेम्ब ऑफ दिस पर्टिकुलर सेक्टर। गवर्नमेंट ग्रांट्स
गवर्नमेंट ग्रांट बेसिकली ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज होते हैं, कोई भी जैसे कैश सपोर्ट कर दिया, कोई भी असेट दे दिया कंसेशनल रेट पे, कोई आपको लोन दे दिया एट लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो ये होता है गवर्नमेंट ग्रांट। बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट में गवर्नमेंट आपको कुछ देती है, कुछ रिसोर्सेज ट्रांसफर करती है, चाहे वो मॉनिटरी हो चाहे वो नॉन मॉनिटरी हो। गवर्नमेंट असिस्टेंस में क्या होता है, गवर्नमेंट असिस्टेंस इज बेसिकली हेल्प, वो आपको कुछ जैसे फॉर एग्जांपल इनकम टैक्स हॉलीडेज, फ्री टेक्निकल असिस्टेंस विदाउट, मतलब इसमें कोई ट्रांसफर ऑफ रिसोर्सेज नहीं होता है, इसमें सिर्फ एक हेल्प होती है। टाइप्स ऑफ ग्रांट्स, दो तरीके के ग्रांट होते हैं, मॉनिटरी ग्रांट और नॉन मॉनिटरी ग्रांट। मॉनिटरी ग्रांट फाइनेंशियल सपोर्ट एंड नॉन मॉनिटरी ग्रांट जैसे कोई असेट दे दिया, गुड्स दे दिए, सर्विसेज दे दिए एक्सेट्रा। एक्सक्लूजन फ्रॉम अकाउंटिंग और गवर्नमेंट ग्रांट। अब ये चीजें अकाउंटिंग और गवर्नमेंट ग्रांट से एक्सक्लूड होती है। गवर्नमेंट असिस्टेंस provided in the form of benefits such as income tax holidays, investment tax credits, accelerated depreciation, ये गवर्नमेंट असिस्टेंस होते हैं, तो इनका इसका सिर्फ डिस्क्लोजर देना पड़ता है अपन को। सेकंड, गवर्नमेंट पार्टिसिपेशन इन द ओनरशिप ऑफ द एंटिटी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने मेरी एंटिटी में इक्विटी खरीदी और उसके लिए फिर मेरे को पैसे, उसके लिए मेरे को पैसे दिए, तो वो गवर्नमेंट ग्रांट नहीं है, बट उसको अपन को, तो इट विल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द अकाउंटिंग ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट। थर्ड, गवर्नमेंट ग्रांट दैट विल बी कवर्ड इन इंडिया 41, मतलब अभी जो पढ़ा अपन ने नॉन बेरर प्लांट और एनिमल्स पे और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पे जो भी गवर्नमेंट ग्रांट मिलेगा वो इंडिया 41 में कवर होगा। फोर्थ, गवर्नमेंट ग्रांट विच कैन नॉट बी रिलायबली मेजर्ड। एंड फिफ्थ, ट्रांजेक्शन विद गवर्नमेंट दैट कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम द नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन। फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट ने मेरे को कोई लोन दिया एट मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो तो मेरे को मार्केट में भी मिल जाता, तो वो कोई ग्रांट नहीं हुई, तो ये भी एक्सक्लूड होगा। इसमें एक नोट है, the significance of the benefit in the above examples may be such that disclosure of the nature, extent and duration of the assistance is necessary in order that the financial statement may not be misleading। मैंने अभी बताया कि गवर्नमेंट असिस्टेंस का डिस्क्लोजर देना पड़ता है ताकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो मिसलीडिंग ना हो, उसमें कोई अकाउंटिंग नहीं होती बट डिस्क्लोजर देना पड़ता है। रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, गवर्नमेंट ग्रांट अपन कब रिकॉग्नाइज करेंगे, जब दो कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी। फर्स्ट, reasonable assurance है that it will comply all the condition attached to the grants। reasonable assurance है कि जो entity है वो all comply करेगी with all the conditions। second condition है कि जो grant है वो अपन को मिल जाएगी। there is reasonable assurance that the grant funds और assets will actually be received। जब ये दोनों conditions fulfill हो जाएगी तब अपन grant को recognize करेंगे। अकाउंटिंग फॉर मॉनिटरी ग्रांट्स फॉर डेप्रिशिएबल असेट, अपन को मॉनिटरी ग्रांट मिली है फॉर डेप्रिशिएबल एसेट्स, अपन को पैसे मिले डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए, तो अपने पास दो ऑप्शन होता है रिकॉर्ड करने के लिए, या तो जो अपन को ग्रांट मिली है वो अपन असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दें, और या तो डेफर्ड इनकम अप्रोच। अगर अपन सेकेंड ऑप्शन चूज करेंगे तो दिस विल रिड्यूस द डेप्रिशिएबल बेस ऑफ द असेट रिजल्टिंग इन द लोअर डेप्रिशिएशन एक्सपेंस चार्ज टू पीएनएल ओवर द असेट्स लाइफ। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अपन के पास ऑप्शन है कि अपन जो ग्रांट मिली वो डेफर्ड एज अ डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड कर दे लायबिलिटी साइड में, और उसको फिर पीएनएल में यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, मतलब यूजफुल लाइफ जैसे जैसे जा रही है असेट की डेप्रिशिएशन जा रहा है वैसे वैसे ग्रांट को रिकॉर्ड करते हैं। सेकेंड, अकाउंटिंग फॉर मॉनिटरी ग्रांट्स फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट। अगर कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट खरीदने के लिए अपन को मॉनिटरी ग्रांट मिली है तो फर्स्ट ऑप्शन तो सेम है कि अपन, एक ऑप्शन ये है कि अपन असेट की कॉस्ट में से रिड्यूस कर दें और इस पे डेप्रिशिएशन तो कुछ चेंज होगा नहीं क्योंकि तो नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स के लिए मिली है। सेकंड ऑप्शन में अपन पास दो क्राइटेरिया है, अगर ग्रांट कंडीशनल है तो क्या होगा, ग्रांट अनकंडीशनल है तो क्या होगा। अगर ग्रांट अनकंडीशनल है तो इट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल इमीडिएटली। अगर ग्रांट कंडीशनल है तो जैसे जैसे अपन कंडीशंस फुलफिल करेंगे वैसे वैसे ग्रांट अपन पीएनएल में डालते जाएंगे। ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड एज डेफर्ड इनकम विल बी रिकॉग्नाइज्ड ओवर पीरियड, ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड, मैचिंग प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड। अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट फॉर एक्सपेंस, अपन को कोई एक्सपेंस इंकर करने के लिए गवर्नमेंट ग्रांट मिली है तो क्या होगा, तो अगर ग्रांट पास्ट एक्सपेंस से रिलेटेड है तो अपन इमीडिएटली उसको पीएनएल में ट्रांसफर कर देंगे क्योंकि अपन एक्सपेंस ऑलरेडी इंकर कर चुके हैं। फॉर एग्जांपल अ ग्रांट रिसीव्ड इन 2026 फॉर एक्सपेंसेस इंकर्ड इन 2025 इज रिकॉर्डेड इन द 2026 पीएनएल इमीडिएटली। ग्रांट फॉर करंट और फ्यूचर एक्सपेंस, अगर कोई करंट ईयर के एक्सपेंस के लिए और फ्यूचर ईयर के एक्सपेंस के लिए ग्रांट मिली है तो अपन ओवर द टाइम पीरियड उसको रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अ ग्रांट रिसीव्ड इन 2026 टू कवर एक्सपेंसेस expected in 2027 and 2028 is recognized proportionately in those years PL. Question for offline participants. ABC Limited operates a dairy farm. On 1st April 2025, it purchases 10 cows. India's 41 का question.
Purchase cost per cow 50,000, fair value per cow 55,000, cost to sell per cow 2,000. Determine the amount at which cow should be recognized at year end. अरे हाथ तो खड़ा करो कोई, किसी को नहीं आ रहा है Fair value less cost to sell पे recognize कर तो मुझे कैसे पता चले कि तेरे को आता है? देखो एग्जैक्टली आई थिंक ऐसे होगा 50 की fair value उसकी शायद 55,000 है, उसमें cost to sell 2,000 माइनस कर देंगे तो एक का आंसर आ जाएगा fair value less cost to sell, उसको मल्टीप्लाई बाय 10 कर देंगे तो सारी कॉस्ट बनेगा। तो आंसर ही बता दो। Correct. 5,30,000 is the answer. Second question. ABC Limited received a government grant of 1 lakh on 1st April 2024 for planting tea bushes. The useful life of the bearer plant is 10 years. You are required to state the relevant Ind AS applicable on government grant. Government grant जो मिली है उस पे कौन सा Ind AS applicable होगा इस केस में? First part ये. हाँ, correct. Ind AS 20 is the correct answer. Second part है pass the journal entries for the first year, assuming the grant is treated as deferred income. First year के लिए entry क्या होगी अगर deferred income approach correct. और एक और entry transfer करने की P&L में correct 10,000. 1 lakh divided by 10 years 10,000. सर ये मतलब कुछ परेशानी कर रही है। हाँ Accounting for non-monetary grant. अब अपन को कोई डेप्रिशिएबल एसेट मिला है तो उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? इसमें दो आपके पास है ही नहीं ये नाम, कोई बदतमीजी कर रहा है, मतलब नाम चेंज। अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट, कोई डेप्रिशिएबल एसेट मिला है तो उस केस में भी दो ऑप्शंस होते हैं बेटा। एक ऑप्शन होता है कि अपन जो ग्रांट और असेट मिली उसको नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और सेकंड ऑप्शन होता है फेयर वैल्यू मेजरमेंट की जो असेट और ग्रांट है उसको अपन फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड करते हैं, और फिर जैसे जैसे अपन असेट पे डेप्रिशिएशन लगा रहे हैं ओवर द पीरियड उसी पीरियड में अपन ग्रांट को भी पीएनएल में ट्रांसफर करते हैं। अकाउंटिंग फॉर नॉन मॉनेटरी ग्रांट्स फॉर नॉन डेप्रिशिएबल एसेट्स, इसमें भी फर्स्ट ऑप्शन यही है कि नॉमिनल वैल्यू पे रिकॉर्ड कर लो ग्रांट और असेट को। सेकेंड ऑप्शन में दो चीजें होती हैं सेम मॉनेटरी ग्रांट की तरह, कंडीशनल ग्रांट है या अनकंडीशनल ग्रांट है। अगर अनकंडीशनल ग्रांट है तो डायरेक्टली पीएनएल में चली जाएगी, और अगर कंडीशनल ग्रांट है तो मैचिंग प्रिंसिपल लगेगा। मतलब जैसे जैसे अपन जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल करते रहेंगे वैसे वैसे ग्रांट पीएनएल में जाती जाएगी। ऑनलाइन पार्टिसिपेंट, क्वेश्चन फॉर ऑनलाइन पार्टिसिपेंट्स। XYZ Limited receives a government grant of 10 lakh related to purchase of machinery costing 50 lakh. The useful life of the machinery is 10 years. How should the grant be recognized under Ind AS 20? Income approach. Option A, entire 10 lakh credited to P&L immediately. Option B, 10 lakh deducted from cost of asset. Option C, 1 lakh credited to P&L every year. And option D, 5 lakh credited to P&L every year. आदित्य बंसल। आदित्य बंसल। The correct answer is option C. 1 lakh credited to P&L every year. Correct. कैसे आया? आदित्य। चलो ठीक है। The correct answer is option C. 1 lakh credited to P&L every year. आंसर कैसे आया? 10 lakh divided by 10 मतलब 10 साल में रिकॉर्ड करेंगे ग्रांट को, तो इसलिए 1 lakh each year. प्रॉफिट एंड लॉस में क्यों लेके जाएंगे? ओसीए में क्यों नहीं लेके गए? सर इनकम अप्रोच फॉलो कर रहे हैं इसलिए। ठीक है। गवर्नमेंट, अब ये एन Ind AS पर्सपेक्टिव, अगर अपन को लोन मिला है बिलो मार्केट रेट तो उस केस में क्या होगा? बेसिकली केस स्टडी है, तो उस केस में जो अपन को लोन मिला है वो अपन एज पर Ind AS 109 रिकॉर्ड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
This fair value represents the amount at which the loan could be exchanged between knowledgeable billing parties. जो अपन को जो अपन को लोन मिले और जिस फेयर वैल्यू पे अपन ने लोन को रिकॉर्ड करा है उस पे जो भी डिफरेंस होगा वो अपनी बेसिकली गवर्नमेंट ग्रांट होगी और उसको अपन पीएनएल में उस बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे जिस बेसिस पे the entity incurs the related expense for which the loans benefit. मतलब जैसे जैसे अपन लोन जिस कंडीशन पे मिला जैसे जैसे वो फुलफिल होती रहेगी वैसे वैसे उस ग्रांट को अपन पीएनएल में डालते रहेंगे. इस पे एक इलस्ट्रेशन है. A Limited received from the government a loan of 50 lakhs at 5% payable after 5 years in a bullet payment. The prevailing market rate of interest is 12%. Current market rate है 12%. अपन को लोन मिला 5% पे. Interest is payable regularly at the end of each year. Calculate the amount of government grant and pass necessary journal entry. तो अपन फेयर वैल्यू ऑफ लोन की कैसे निकालेंगे? ये 5% का इंटरेस्ट आएगा 2.5 लाख 5 साल के लिए और लोन एट द एंड ऑफ ईयर 5 हो गया 50 लाख. इस पे पीवी फैक्टर निकाल लिया एट द रेट ऑफ 12% क्योंकि मार्केट में रेट 12% चल रही है तो प्रेजेंट वैल्यू निकल गई 3738328 की. इस वैल्यू पे अपन लोन को रिकॉग्नाइज करेंगे. जो इस पे डिफरेंस आएगा 50 लाख माइनस 3738328 उसको अपन एज ए गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि बेसिक यही है अपना बेनिफिट. अगर लोन की फेयर वैल्यू इतनी है और अपन को फिर 50 लाख मिल रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस है वो अपना बेसिकली बेनिफिट होता है. उसकी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 50 lakhs टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट 12 lakhs टू लोन अकाउंट 37 lakhs. कंटिन्यूइंग विद द फैक्ट्स गिवन अबव, ये इलस्ट्रेशन का कंटिन्यूएशन में स्टेट हाउ द ग्रांट विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन द स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल. द लोन इज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर टू रेस्क्यू द एंटरप्राइज. अपन को जो लोन मिला है वो एज एन इमीडिएट रिलीफ मेजर मिला है. तो अभी अपन ने एक्सपेंस पढ़ा था तो उसमें जो पास्ट एक्सपेंस रिलेटेड था उस पे वो एप्लीकेबल होगा और वो डायरेक्टली पीएनएल पे चला जाएगा क्योंकि इमीडिएट रिलीफ मेजर के लिए मिला है. कोई कंडीशन अटैच नहीं है इसमें. बी पार्ट, द लोन इज अ सब्सिडी फॉर स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस इंकर्ड इक्वली फॉर अ पीरियड ऑफ 4 years. अब इसमें कंडीशन अटैच है कि स्टाफ ट्रेनिंग एक्सपेंस के लिए मिला है और 4 साल के लिए मिला है तो अपन ग्रांट को किस बेसिस पे ट्रांसफर करेंगे? ओवर द पीरियड ऑफ 4 years. पार्ट सी, द लोन इज टू फाइनेंस अ डेप्रिशिएबल असेट. तो जैसे जैसे डेप्रिशिएबल असेट अपन डेप्रिशिएट करते जाएंगे वैसे वैसे अपन ग्रांट को भी पीएनएल में डालते जाएंगे. रीपेमेंट, अगर अपन कंडीशनल ग्रांट का ब्रीच कर देते हैं तो क्या होगा? तो इस केस में अगर इनकम ग्रांट रीपेमेंट है फॉर ग्रांट्स प्रीवियसली रिकॉग्नाइज्ड एज इनकम. अगर अपन ने प्रीवियसली डीटीजी रिकॉर्ड किया था मतलब डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉर्ड किया था और अपन पीएनएल में डालते जा रहे थे तो उस केस में अपन रिवर्स करेंगे. जर्नल एंट्री होगी डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट. जितना अपन के पास बैलेंस पड़ा हुआ है जितना अपन ने पीएनएल में डाल दिया उसको पीएनएल से एडजस्ट करेंगे. पीएनएल अकाउंट डेबिट और पेमेंट की एंट्री टू बैंक. और अगर अपन ने असेट की कॉस्ट में से कम किया था, अगर बैंक अकाउंट डेबिट टू असेट किया था तो अपन असेट की वैल्यू बढ़ा देंगे और प्रोपोर्शनेटली प्रोस्पेक्टिवली उसका असेट का कैरिंग अमाउंट इंक्रीज हो जाएगा और डेप्रिसिएशन भी इंक्रीज हो जाएगा. जर्नल एंट्री होगी असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. क्वेश्चन, ABC Limited received a grant of 10 lakhs for machinery useful life 10 years and deducted it from asset cost. After 4 years the grant becomes refundable. What is the treatment? Option A, 10 lakh charged to PNL. Online. Option A, rupees 10 lakh charged to PNL. Option B, rupees 10 lakh added to carrying amount of asset. Option C, 6 lakh added to carrying amount. Option D, no adjustment. Anas Nair. Sir, answer is B. Correct. डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स, ये डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है. गवर्नमेंट असिस्टेंस का तो अपन डिस्क्लोजर देते ही देते हैं बट जो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है उसका भी अपन डिस्क्लोजर देते हैं कि किस बेसिस पे क्या नेचर है, क्यों मिली है अपन को गवर्नमेंट ग्रांट, क्या एक्सटेंट है, अमाउंट क्या है गवर्नमेंट ग्रांट का. एंटिटीज मस्ट डिस्क्लोज द नेचर ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट एंड देयर फाइनेंशियल एक्सटेंट. सेकंड, अनफुलफिल्ड कंडीशन, अगर कोई कंडीशन अटैच है और उसके ब्रीच होने पे अगर अपन को ग्रांट रिफंड करना पड़ जाएगा तो वो भी डिस्क्लोज करना पड़ता है. अकाउंटिंग पॉलिसी कौन सा मेथड अपन ने चूज किया है, डेफर्ड इनकम अप्रोच और डिडक्शन फ्रॉम असेट कॉस्ट, ये भी अपन को डिस्क्लोज करना पड़ता है. इस पे एक प्रैक्टिकल इंसाइट है कि HUL का एक्सट्रैक्ट लिया है मैंने, एक्सट्रैक्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ HUL. तो इसमें इनको गवर्नमेंट ग्रांट मिली है
इधर लिखा हुआ है इंसेंटिव अंडर द स्कीम इज सब्जेक्ट टू बीटिंग सर्टेन कमिटेड इन्वेस्टमेंट्स एंड डिफाइंड इंक्रीमेंटल सेल्स थ्रेशोल्ड। तो जैसे जैसे फुलफिल कंडीशंस, जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल करेंगे वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट डालते जाएंगे। तो इन्होंने डिस्क्लोज किया कि ये कंडीशंस है और इसके ब्रीच होने पे अपन को गवर्नमेंट ग्रांट रिफंड करना पड़ जाएगा। और ये क्या अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं, इनकम फ्रॉम सच ग्रांट्स इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। जैसे जैसे कंडीशंस फुलफिल होगी वैसे वैसे गवर्नमेंट ग्रांट पीएनएल में जाता जाएगा। नेचर क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट्स किस चीज के लिए मिली, विच इज जीएसटी, बजटरी सपोर्ट एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। दिस इज द एक्सट्रैक्ट। थैंक यू। Recording stop. Recording. Which